all the esteemed guests and Vedula ma'am, as well as Vaidehi ma'am, Swati ma'am, Hemant sir, and all the little young Durgas of our group. I welcome you all to day 3 of our campaign. NOGS presents the Nav Shakti Durgotsav, as it is called, 9 days, 9 Shaktis, 9 life skills for our Durgas. Here we have day 3, day of Ma Chandraghanta. And the first campaign that we are running parallelly is Meri Beti Meri Shaan, where we have first person Dr. Alka Mukherjee ma'am with her daughter, and she says one needs to realize with empathy and gratitude how compassionately parents are devoted to their girl child. And every girl should learn to respect the unconditional parents' love with pride. Totally agreed, ma'am. Second mom is proud mom of 2 daughters, Dr. Sumit Baheti ma'am. And she has to say that her daughters are my treasure, my pride, my best friends for life. And the third one here is proud mom of 2 daughters again, Dr. Archana Kothari ma'am. She is also currently the president of IMA Nagpur. And she says, पूरे घर की जान होती हैं बेटियां, 2 परिवारों का मान होती हैं बेटियां, और माता पिता की शान होती हैं बेटियां. Very nicely said. The second campaign that we are running along with this is the NOGS Now Arogya Sutra campaign. And today the third sutra that we present is preventing osteoporosis. As we know, calcium, vitamin D, and exercise. These 3 are the real friends of your bone, and they love your bones. And they are the ones who are going to help you to protect your future. And we all know that future is very important. We must take care of our future. And thirdly, the third campaign is the life skill session. And today is day 3, day of Chandraghanta Ma. And the topic is Born to Lead, leadership quality. And speaker is Vidula Lakshmi ma'am, very famous. And before we start, I'd like to invoke the blessings of Ma Chandraghanta, who is the third form of goddess Durga. It means one has a moon-shaped bell on her forehead. She is believed to reward people with grace, bravery, and courage. So let's invoke her blessings. And now I would like to ask ma'am, our super energetic and very graceful president ma'am, Vaidehi Marathe ma'am, to give the welcome address. Thank you so much, Ami. That was so sweet of you. आज के प्रमुख वक्ता वेदुला रामलक्ष्मी मैम, आज के चेयरपर्सन श्री हेमंत गावड़े जी, कॉलेजेस के सभी प्रिंसिपल्स तथा कोऑर्डिनेटर्स और मेरी प्यारी सहेलियों,
मैं डॉक्टर वैदेही मराठे, प्रेसिडेंट नागपुर ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी, आप सभी का यह नवशक्ति दुर्गोत्सव में हार्दिक स्वागत करती हूँ। माँ दुर्गा स्त्री शक्ति का एक पूरक और असीम अवतार है और हम उन्हें बड़ी ही आत्मभाव से पूजते हैं, क्योंकि दुर्गा माँ का हर एक अवतार स्त्री शक्ति का एक प्रतीक है। फिर हमने भी सोचा कि क्यों ना दुर्गा माँ के इन 9 अवतारों को, ये 9 शक्तियों को अपनी यंग जनरेशन को समर्पित किया जाए, और इसी भावना से जन्म हुआ नवशक्ति दुर्गोत्सव का। इन 9 दिनों में हम रोज माँ दुर्गा की हर एक शक्ति के अनुसार एक लाइफ स्किल सेशन लेंगे, जो हर एक लड़की के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल बी इमेंसली बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ दैट। अभी तक हम लोगों ने स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड नो मीन्स नो, दैट इज पुलिंग योर ओन स्ट्रिंग्स, ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे हमने सेशन लिए थे। और आज और इसके आगे हम लोग फेसिंग चैलेंजेस, आई वांट टू लिव, सेक्सुअल अब्यूज, आज मैम बोलने वाली है लीडरशिप पे, बैलेंसिंग रिलेशनशिप्स, सेल्फ डिफेंस, ग्रूमिंग एंड फाइनली नो योर बॉडी। ऐसे अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे सेशंस लेंगे। बहुत धन्यवाद दूंगी आज की वक्ता वेदुला राम लक्ष्मी मैम जी का। आपने आपका कीमती समय हमारे बच्चों के लिए दिया, बहुत बहुत आभारी हैं। दिल से धन्यवाद दूंगी आज के चेयरपर्सन श्री हेमंत जी का और सभी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स तथा कोऑर्डिनेटर्स का, जिनके सपोर्ट के बिना ये नवशक्ति दुर्गोत्सव बिल्कुल भी संभव नहीं था। आप सबका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, लेट्स गेट स्टार्टेड। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस इंटरेस्टिंग सेशन, the never before Navshakti life skills session. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So today's topic is women entrepreneurship and women leadership. And speaker is leadership guru, Dr. Vedula Ramalakshmi ma'am, for whom oratory is passion. And I'd just like to give a brief introduction about her. She is associate professor at Kamala Nehru Women's College, Bhubaneswar, with more than 27 years of experience in teaching Hindi language and literature at all levels. She is doctorate in PhD Hindi literature, and she has association with many organizations, including Doordarshan. She has been a part of literary magazine Utkal Bharti as host and expert panel member, conducting anniversary program of Hindi Divas since 2008, has been anchors for various magazines like Sanskriti Bharti for DD Bharti, also national program of dance for DD National since 2012. Also, she has been anchoring international festivals like Sand Art Festival and also hosted Army Melas for 2 days. She has been a proud recipient of the G. Sundara Reddy Gold Medal for overall merit as well. She has trained over 15,000 participants like teachers, students, professors of various colleges like Academic Staff College, Kendriya Hindi Sansthan, IIT Kharagpur, RBI, SBI Banks, UCO Banks, Vishwamukti, and BS Ambedkar universities and various other universities in Bhubaneswar, Patna Nagar, Shalboni, and various other places. And she has language proficiency in Hindi, English, Odia, and Telugu. Commendable, ma'am. Today she is going to talk to us about this topic, that is born to lead. And basically what happens is that many women have goals, but they do not reach them somehow, only few reach them. They have, and the need is that just the proper ideas are lighted up at the proper time. Sometimes even women are not able to manage their house and kids along with their profession. So ma'am is going to give us an enlightening session on this so that we all feel the same way as this person is feeling. I can do it. Over to you, ma'am, for the session. Ma'am, please unmute. Thank you Vaidehi ma'am, thank you Ami, thank you Swati, thank you so very much.
इतने सारी दुर्गाओं के साथ जिसमें शक्ति बीज रूप में विद्यमान है, परेशानी इसी बात की है कि वो बीज रूप में ही कई लोगों में रह जाती है। उसे अंकुरित होने, प्रस्फुटित होने और बाहर निकलने की भूमि कभी कभी नहीं मिलती, कभी कभी आसपास का वातावरण इस प्रकार से नहीं मिलता, और कभी कभी वो स्वयं भी उसके जो पोषक तत्व उसे देने चाहिए हम स्वयं भी उसे नहीं देते, और वो शक्ति बीज रूप में हमारे भीतर रह जाती है। और उसके बाद हम जीवन भर इस बात का रोना रोते रहते हैं कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, मैं हमेशा से पीछे छूट गई हूँ, मुझे कोई देखता नहीं है, मैं एक औरत हूँ इसीलिए मेरी तरफ ध्यान नहीं जाता, मैं एक बहुत ही सामान्य से परिवार से आई हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से आई हूँ, मैं छोटे टाउन से आई हूँ, मैं मतलब बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं पैसे वाले या रसूखदार लोगों के साथ मैं जुड़ी नहीं हूँ, मेरे को वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली है, मैं एक सामान्य से कॉलेज में पढ़ी हूँ या नॉर्मल मतलब म्यूनसिपैलिटी स्कूल में या गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ी हूँ, मुझे भी अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती तो मैं भी कमाल करके दिखा देती। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एंड माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी यहाँ पे महिलाएं हैं, मैं आपको बता दूं कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप नहीं कर सकते, और सारा कुछ एक बीज रूप में आपके भीतर शक्ति के रूप में संचित है। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे कितनी हवा देते हैं, कितना पानी देते हैं, कितने पोषक तत्व देते हैं, कितना ऐसा वातावरण उसे देते हैं ताकि वो बीज एक मतलब पनप कर महावृक्ष बन जाए और न जाने कितने लोगों को और सहारा देने लगे। ये काबिलियत आप में, मुझ में और सुनने वाले हम सभी में। हम अगर औरतों के बारे में बातें करें, महिलाओं के बारे में बातें करें, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हम पुरुषों के विरुद्ध नहीं बात कर रहे। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली। सामान्य रूप से जब भी हम महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो दिमाग में एक ही बात आती है कि हमारा इस विश्व में अगर सबसे बड़ा कोई प्रतिद्वंदी है तो वो पुरुष है, और मैं तभी अपने आप को स्थापित कर सकती हूँ, खड़ा कर सकती हूँ, जब उस पुरुष नाम के प्राणी को मैं नीचा दिखा सकती हूँ। लेकिन मैं बता दूँ, जिस तरह से मैं भी डॉक्टर हूँ, वैदेही मैडम भी डॉक्टर है, लेकिन मैं लिटरेचर पढ़ाती हूँ। वैदेही मैडम जो है मैं एक तरह से कहूँ, मैं मनुष्य के आचरण और व्यवहार की बीमारी दूर करती हूँ, और वैदेही मैडम शरीर की बीमारी दूर करती हैं। लेकिन हम दोनों में कोई मुकाबला, मतलब किसी भी तरह के कोई कंपैरिजन है ही नहीं, किसी प्रकार की तुलना हो ही नहीं सकती। एग्जैक्टली द सेम वे स्त्री और पुरुष एकदम भी अलग विभूतियां हैं इस ईश्वर की बनाई हुई, इन दोनों में किसी प्रकार का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इसीलिए ये बात हम शुरू से ही दिमाग में रख कर चलेंगे। बीच बीच में कई बार हम शायद कुछ ऐसा डाटा लेकर आए, कुछ ऐसे अंक लेकर आए, कुछ ऐसी बातें करें जहां पे पुरुष की बात आएगी जरूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे आगे निकलने के चक्कर में या उनको मतलब हम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उनको अपदस्थ कर रहे हैं या उनको अपमानित कर रहे हैं। ये बात हम अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें। सबसे पहली बात तो ये कि आज का जो सेशन है बॉर्न टू लीड, सो माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी का जन्म ही हुआ है एक लीडर की भांति, क्योंकि लीडर्स जो हैं बनाए नहीं जाते, लीडर्स बनने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। लीडरशिप वो एक क्वालिटी है जो अपने आप में आ जाती है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। समझ लीजिए बाहर कोई तूफान आ रहा है, बहुत जोर की आंधी चल रही है, और जिस प्रकार से हम अपने आप को बचाने का हर संभव प्रयास करते हैं, लीडरशिप भी एक ऐसी ही क्वालिटी है जो आपको मुसीबत में आगे जाने के लिए या चैलेंजेस से लड़ने के लिए, चैलेंजेस को टेकअप करने के लिए, और उसके बाद अपने आप को शीर्ष पर खड़ा रखने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको भी मोटिवेट करने के लिए, और कई बार अपने सपने उनकी आंखों में भरने के लिए, कई बार उनकी आंखों के सपनों को पूर्ण करने के लिए आप में वो क्वालिटी स्फुरित होती है, आप में वो क्वालिटी आ जाती है, और उसको हम लीडरशिप क्वालिटी कहेंगे। मैं अपना स्क्रीन शेयर करके अपनी बात और स्पष्ट रूप से आगे मतलब रखना चाहूँगी। देख पा रहे हैं आप मेरी स्क्रीन को? नहीं, एक्सक्यूज मी। नहीं मैम, अभी नहीं। नहीं, अच्छा ठीक है, सॉरी। या आई थिंक आप देख पा रहे हैं, राइट? यस मैम, अभी है, दिख रहा है। अभी देख पा रहे हैं? हाँ जी।
दिख रहा है। बॉर्न टू लीड, यस। बॉर्न टू लीड अर्थात हमारा जन्म ही हुआ है लीड करने के लिए। अब लीडरशिप की कुछ बेसिक बातें करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे लीडरशिप के बारे में अगर हम बात करें तो ढेर सारे डेफिनेशंस आपको मैनेजमेंट की किताबों में मिल जाएंगी। कोई कहेगा अगर मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूं तो फिर आप तरह तरह के उत्तर देंगे, क्योंकि लीडरशिप की आपकी समझ, हम सब की समझ अलग अलग है। कोई कहता है जो आगे चले वो लीडरशिप है, कोई कहता है जो पीछे चले वो लीडरशिप है, कोई कहता है जो सबको साथ में लेके चले वो लीडरशिप है। लेकिन मेरी दृष्टि में लीडरशिप जो वो एबिलिटी है, जो लीडरशिप इज योर एबिलिटी टू गेट रिजल्ट थ्रू अदर्स, मतलब दूसरों के माध्यम से, आपके आसपास जो लोग हैं उनके माध्यम से रिजल्ट्स यानी वो गोल्स जो आप पूरे करना चाहते हैं उनको अचीव करना ही लीडरशिप है। या हम कहें कि द लीडर शुड बी इनविजिबल अमंग द फॉलोअर्स, लीडरशिप को दिखना ही नहीं चाहिए। अगर इस पिक्चर को जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है उसकी तरफ नज़र डालें तो बहुत मुमकिन है कि आप बोलें कि जो सामने जो झंडा पकड़कर एक पुरुष जा रहा है वो एक लीडर है, लेकिन मेरी समझ में तो बीच में वो जो लड़की है वो लीडर है ना, जो आगे सबको मोटिवेट कर रही है और पीछे से लोगों को अपने साथ लेकर आ रही है। बीच में उसने अपनी स्थिति इसीलिए बनाई है ताकि उसकी पूरी नज़र आगे और पीछे रह सके और पूरे टीम को साथ में लेकर चल सके। आपके नज़र में हो सकता है कि जो सबसे पीछे जो मतलब पुरुष है वो लीडर है। क्यों? क्योंकि वो पीछे से खड़े होकर देख रहा है कि उसकी पूरी टीम कैसे काम कर रही है, किस तरह से एक गोल की तरफ, एक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही है, ये आपको लग सकता है। तो दरअसल लीडर शुड बी इनविजिबल अमंग द फॉलोअर्स, अर्थात उसमें ऐसी काबिलियत होनी चाहिए कि वो अपने साथ रहने वाले हर एक व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटीज को इन्फ्यूज कर दे, हर एक में वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दे, हर एक व्यक्ति में ये बात डाल दें कि एक सपने को हम लेके चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो नवशक्ति दुर्गोत्सव आप मना रहे हैं, है ना, आपके इस संस्था की या जो ये जो समूह है आपका, इसकी प्रेसिडेंट जो है मराठे मैडम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने बागडोर अपने पास रखी हुई है और ये कह दिया है कि जो कुछ करूंगी मैं ही करूंगी, तुम सब चुपचाप बैठ के देखते रहो क्योंकि तुम्हें ये काबिलियत नहीं है कि तुम ये काम कर सको, इसीलिए मुझे संभाल लेने दो। क्योंकि तुमने अगर मुझे लीडर चुना है तो इसीलिए चुना है क्योंकि मैं सारे काम करना बहुत अच्छे से जानती हूँ। ऐसा नहीं है, उन्होंने अलग अलग लोगों को काम बांटे हैं। सबसे पहले प्रोग्राम डिज़ाइन हुआ है, उसमें भी उन्होंने सबकी मतलब सलाह ली होगी। उसके बाद जब फैकल्टीज़ को चुनना होगा तब भी आपने सबकी सलाह ली है। उसके बाद इसका नाम क्या देना है, इसकी रूपरेखा क्या होगी, किस दिन का कार्यक्रम कौन चलाएगा, कौन मतलब कोऑर्डिनेटर होगा, कौन इस कार्यक्रम में जो फैकल्टी है उनका परिचय पढ़ेगा, कौन धन्यवाद ज्ञापन करेगा, कौन सबको सबसे पहले वेलकम नोट देगा। तो ये सारी की सारी रूपरेखा बनाते समय डेफिनेटली मराठे मैडम ने, डॉक्टर मराठे ने यही सोचा होगा कि मुझे पता है कि मेरी टीम में सभी लोगों में कौन कौन सी काबिलियत है, और उन काबिलियत को देखते हुए अगर नहीं भी दिखा तो उनको याद दिलाते हुए कि ये काम तुम बहुत अच्छे से कर सकती हो और ये काम तुम्हें करना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने अपने टीम को मजबूत किया और तभी जाकर ये कार्यक्रम जो है इतने शानदार तरीके से सफलतापूर्वक हमारे सामने आ रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको एक पोजीशन हो तभी आप लीडर बनेंगे। सो व्हाट इज लीडरशिप? डेवलपिंग लीडर्स अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग वर्ल्ड, अर्थात जो दुनिया बदल रही है उसके अनुसार जो है लीडर्स को तैयार करना भी एक लीडरशिप है। क्योंकि हम देखिए हर दिन बदल रहे हैं, हमेशा बदल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले एक समय होता था, अभी भी मैं अगर अपने टीचर के घर जाती हूँ तो फिर मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं वहाँ पर जाकर उनके सामने बैठूँ। मैं हमेशा इतने डिस्टेंस पर खड़ी रहती हूँ क्योंकि वो मुझे इस तरह से दिखाई देते हैं, मैं उनको इस तरह से देखती हूँ। जब तक वो मुझे नहीं कहते कि वेदुला बैठ जाओ, मैं बैठने की हिम्मत तक नहीं कर सकती। ये बात हम मेरी उम्र के जितने भी लोग हैं वो सारे इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन आज मेरी बच्चियां जो हैं मुझे देखते साथ कहीं दूर से देखती हैं और दौड़े दौड़े चली आती हैं और जोर से मुझे गले लगा लेती हैं। लेकिन हम तो हमारे टीचर के पास बैठने से भी डरते थे। आज भी नहीं मतलब आज भी हिम्मत नहीं होती।
इसका मतलब क्या है कि आज मेरी बच्चियां गलत है? बिल्कुल भी नहीं। हमने अपने तरीके से अपना सम्मान और स्नेह अपने टीचर के प्रति दिखाया और आज मेरे बच्चे अपने तरीके से सम्मान और स्नेह मेरी तरफ दिखा रहे हैं। सम्मान और स्नेह वही है, लेकिन प्रदर्शित करने का तरीका बदल गया। उसी तरह से समय के साथ हर एक चीज में परिवर्तन आ रहा है, लीडरशिप में भी परिवर्तन आ रहा है। तो आज बदलते हुए समय के साथ जब हम बहुत सारे लीडरशिप क्वालिटीज के साथ आसपास लोगों को खड़ा कर देते हैं तो वो सच्ची लीडरशिप है। आखिरकार लीडरशिप क्वालिटीज से युक्त लीडर्स बनाना मतलब क्या? इसका मतलब ये, लीडरशिप मतलब क्या? एक ऐसा व्यक्ति जो हर हाल में, हर मुसीबत में, हर संघर्ष की स्थिति को संभाल कर उसमें से अपने आप को और अपने सारे लोग, जितने भी लोग उससे एसोसिएटेड है, उन सभी को जब तक वो बाहर निकाल कर लेकर आता है या अपने द्वारा निर्धारित किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में या अपनी टीम के द्वारा निर्धारित किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में वो सहायक सिद्ध होता है, उन सभी को साथ में लेकर चलता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करता है, हम उसको लीडर कहते हैं। तो ऐसे में लीडर के लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है दरअसल एक बहुत अच्छा फॉलोअर बनाता है। समझ लीजिए, मैंने आपको बाहर से हमेशा ये कहा है कि देखो बेटा, तुमको अपने लक्ष्य को पूरा करना है, तुम जो पढ़ाई कर रहे हो ये बात ध्यान रखो कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर द हार्ड वर्क, है ना, एंड देयर इज नो लिफ्ट फॉर द सक्सेस। आपको सीढ़ियां चढ़कर मेहनत करके ही आपको सफलता मिल सकती है, इसीलिए खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, है कि नहीं। और आपको ये लगता है कि सही बात है, मैडम जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे आज से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, और आप टाइम टेबल बनाते हैं, बैठते हैं पढ़ने के लिए और पढ़ लेते हैं। 2 दिन पढ़ते हैं, तीसरे दिन पढ़ते हैं, चौथे दिन से आपके दिमाग से वो बातें उड़ जाती हैं। 5वें दिन फिर से मुझे आपको यदि बोलना पड़ गया तो आप वहां पे लीडर नहीं है, आप एक फॉलोवर हैं, क्योंकि आपको बार बार एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, यानी किसी के बोलने की जरूरत पड़ती है। जब तक कोई ना बोले आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या काम करना है। लेकिन वहीं पर इंटरनल मोटिवेशन, अर्थात मैंने आपको एक बात कह दी तो आप क्या करते हैं, आप उसको अपने लक्ष्य के लिए उन वाक्यों को पकड़कर बैठते हैं, अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, अपना ड्रीम बनाते हैं, उसको आप एक पेपर पर लिखते हैं, उसको आप अपने पढ़ने वाली जगह पर रखते हैं या ऐसे जगह पर रखते हैं जहाँ पे आपकी नज़र हर बार पड़ती होगी। उसे जब कभी आप देखते हैं, या नहीं तो अपने मोबाइल स्क्रीन पर रखते हैं, क्योंकि मोबाइल आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मोबाइल स्क्रीन पर आपने अपना लक्ष्य रख लिया, ये बहुत ही अच्छा तरीका है। जब भी आप मोबाइल खोलेंगे आपका लक्ष्य आपको दिखाई देता है, तो बार बार आप भीतर से मोटिवेट होते रहते हैं। मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, या आपके टीचर्स को, पेरेंट्स को बोलने की जरूरत नहीं है, आपने उसको अपनी सोच का तरीका बना लिया है। और जब वो आपकी सोच का हिस्सा बन जाता है, जब उसे आप अपना इंटरनल मोटिवेशन बना लेते हैं, तब होता क्या है, आप अकेले मोटिवेट नहीं होते, बल्कि आप क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं और बोलते हैं, अरे सुनना, तेरा ये वाला पोर्शन हो गया क्या? वो कहती नहीं रे, मैं 2 दिन से नहीं पढ़ पाई। अरे क्या कर रही है, पढ़ाई करना, एग्जाम के लिए अभी 10 दिन तो बचे हैं। ऐसा थोड़ी होता है, चल एक काम करते, तेरे को कोई प्रॉब्लम है, चल मैं बताती हूँ, अपन दोनों मिलकर पढ़ाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद तू मतलब तेरे को कुछ नोट्स चाहिए, चल मैं भेजती हूँ। क्या हो रहा है, इंटरनल मोटिवेशन ने आपको एक लीडर बना दिया, जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य नहीं, बल्कि अपने साथ जितने लोग हैं उनके लक्ष्य के लिए भी आप काम करने अननोइंगली लग जाते हैं, क्योंकि आप में वो लीडर बनने की काबिलियत है। और वो काबिलियत कहां से आई है? एक्सटर्नल मोटिवेशन से नहीं, बल्कि इंटरनल मोटिवेशन से। अर्थात बार बार अपने भीतर आप अपने आप का मनन कर रही हैं, चिंतन कर रही हैं, आपका जो सपना है, आपका जो लक्ष्य है, वो हमेशा आपके मस्तिष्क में है और आप उसे पाने की हर संभव प्रयास करती ही रहेंगी। लीडरशिप इज नॉट प्रॉफिट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये मत समझिएगा कि उसमें प्रॉफिट और बेनिफिट है, ये नहीं कि मैंने तुझे ये नोट्स दिया, तू मुझे वो नोट्स देगी क्या? नो, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कि नहीं मैं पास होंगी इतना काफ़ी नहीं, मेरे साथ सभी लोगों को पास होना है, सभी लोग अच्छे जगह पर पहुंचने चाहिए, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को अच्छी नौकरियां मिलनी चाहिए, उन सभी को अपने लाइफ में अच्छे से एस्टैब्लिश करना चाहिए। दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि डॉक्टर मराठी मैडम हैं, उनकी भी अगर हम बात करें, प्रॉफिट और बेनिफिट इसमें कुछ भी नहीं है,
ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद उनको कोई गोल्ड मेडल डाल देगा, यानी तो फिर कोई बहुत अच्छा सा टाइटल दे देगा, लेकिन हाँ ये उनकी जिम्मेदारी है। एंड आई एम 100% श्योर कि बार उनको दूसरे सेशन की चिंता होती है। जैसे कल का सेशन जैसे ही खत्म हुआ तो वो अनाउंसमेंट कर रही थी, सारे बच्चों को मराठी में बोल रही थी कि कल भी एक अच्छा सेशन है, तुम लोग सब आओगे, राइट? और जैसे ही आज ज्वाइन होते हैं तो एक एक नाम लेकर स्टूडेंट्स को, अच्छा देखो ये आ गई है ना, ये हर दिन आती है, सबसे पहले आती है मोटिवेशन, एक मोटिवेशन, एक कोशिश की जो मैंने प्रयास किया है वो प्रयास तब तक सब तक पहुंचे, ये एक जिम्मेदारी, राइट? तो इस तरह से लीडरशिप दरअसल एक जिम्मेदारी है, ये कोई आसन नहीं है, ये कोई पोजीशन नहीं है, ये कोई चेयर नहीं है। और यहाँ पे लीडर कहने से वो 5 साल में एक बार दिखाई देने वाले खादीदारी तिरछी टोपी वाले मतलब क्या कह सकते हैं लीडर्स की, नेताओं की बात हम नहीं कह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस लीडर की जो हम सभी में हैं, जो हम सभी में हैं, लेकिन हम इसको पहचानते नहीं हैं। द मोमेंट वी रियलाइज दैट हमारे भीतर भी एक लीडर है, विश्वास कीजिए हमें अपने सपनों को पूरा करने से बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। इनफैक्ट सिर्फ हम अपने सपने ही पूरे नहीं करते, बल्कि हम अपने साथ जितने भी और लोग हैं उनके सपनों को भी पूरा करने में हम उनकी सहायता करते हैं और उनको भी अपने साथ आगे लेकर जाते हैं। ये दरअसल लीडरशिप है, राइट? आगे अगर हम देखें कि एक लीडर की क्या कहें खूबियाँ क्या होती हैं, उसके गुण क्या होते हैं, अगर हम देखें तो सबसे पहले लीडरशिप, जैसे कि मैंने कहा, कोई एक टाइटल नहीं है, कोई एक अटायर नहीं है, कोई एक पोजीशन नहीं है, ये एक एटीट्यूड है, अर्थात देखने का नज़रिया है, देखने का नज़रिया है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको ये बात कहूँ कि समझ लीजिए आपके मतलब घर में आपकी बर्थडे पार्टी है, राइट? और आपने 20 लोगों को बुलाया हुआ है, ठीक है? एंड किसी कारणवश ऐसा होता है कि जो कुक आके खाना बनाने वाला था वो कुक जो है फ़ोन करके बोलता है कि मेरी तबीयत ख़राब है या कोई भी वजह है, मैं आज नहीं आ सकता। आपके घर गेस्ट आने शुरू हो गए हैं। समझ में आई कि नहीं बात, है ना? तब आप अपने हाथ खड़े कर देते हो। 20 लोगों को संभालना मेरे बस की तो बात बिल्कुल भी नहीं है। एक क्राइसिस है कि नहीं? और घर के जो मालिक हैं, सामान्य रूप से जो पापा हैं, वो क्या कहेंगे कि ओ माय गॉड, मेरे से तो सब हो ही नहीं सकता। और वो फ़ोन लगाते जाएंगे, उससे बात करेंगे, किसी और से बात करेंगे, वो कुक से बोलेंगे भाई तो बिल्कुल नहीं आ सकता क्या, तेरे असिस्टेंट को भेज दे, नहीं तो किसी और का नंबर दे दे, उसको मैं बुला लेता हूँ, है कि नहीं? वो अपने तरीके से कोशिश करते हैं। और ऐसे में पता नहीं कब चुपचाप माँ जो है किचन में जाती है और उसके बाद जो है धीरे धीरे खाना बनाने लगती है। आपके गेस्ट आ रहे होते हैं, आप ये रियलाइज भी नहीं करते कि खाना बनकर तैयार हो चुका है। दैट इज व्हाट इज लीडरशिप। मतलब एक ऐसी परिस्थिति जो कि क्राइसिस हो गई है, उसमें से आपको निकाल कर रख दिया है बहुत ही सुंदर तरीके से, राइट? तो यहाँ पे वो एक एटीट्यूड चाहिए कि किस तरह से मुसीबत में से निकलना है और खुद भी निकलना है, दूसरों को भी निकालना है, और बहुत ही सक्सेसफुली लोगों को मतलब उस तरफ लेके जाना है जिसका आपने सोच रखा है, या कोई भी लक्ष्य या ड्रीम या जो कुछ भी आपका है आपने बना रखा है, वहाँ तक चुपचाप लेकर चले जाए। कभी कभी शब्दों के साथ लेकर चला जाए, कभी कभी अपने एक्शंस के बल पर लेकर जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम देखते एक के बाद एक। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एक दादी का एग्जाम्पल देती हूँ। माई दादी शी लिव फॉर 90 ईयर्स, 90 वर्ष वो जीवित रही, लेकिन मैंने कभी भी 5 बहुएं, मेरी माँ सबसे बड़ी बहू, 5 बहुएं, मैंने उनको कभी भी अपनी बहुओं को ये कहते हुए नहीं सुना कि ये काम तुम करो, ये काम तुमने नहीं किया, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे तुमको करना है, कभी नहीं कहा उन्होंने। पता है वो क्या करती थी? सुबह उठ जाती थी और उसके बाद झाड़ू लेके खुद ही झाड़ू लगाना शुरू कर देती थी, या नहीं तो फिर घर में किचन में जाके खाना बनाना शुरू करती थी। झाड़ू लगाना शुरू किया, एक बहू ने आकर झाड़ू ले लिया, झाड़ू लगाने लगी, अरे 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 माँ आप क्यों कर रही हैं? उसके बाद किचन में चली जाती थी खाना बनाने के लिए, दूसरी बहू आके बोलती थी अरे ये आपका काम नहीं, आप बैठिए ना, हम बना लेंगे। सिंपल।
तो अपने एक्शंस के द्वारा भी मतलब लीडर जो है अपने काम करता है, कभी कभी अपने मोटिवेशन के द्वारा भी काम करता है, लोगों को अच्छी बातें बताकर करता है कि नहीं, और कभी कभी बिना कुछ कहे चुपचाप अपने काम वो कर लेता है और लोगों को बाद में समझ में आता है कि अरे सारा काम तो हो गया, या नहीं तो फिर हमने अपना वो गोल अचीव कर लिया। तो लीडरशिप का मतलब हमेशा बहुत बड़ी पोजीशन नहीं, जीवन के छोटे मोटी समस्याओं से निकलना और निकालना और उसकी काबिलियत रखना भी लीडरशिप ही कहलाता है। सो नॉट सेल्फ बट सोसाइटी और द ग्रुप हम कह सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ मैं नहीं होती, लीडर की सबसे बड़ी पहचान होती है कि नॉट मी बट वी, ये उसका स्लोगन होता है कि सिर्फ मैं नहीं बल्कि हम सभी के लिए ये आवश्यक है, हम सभी के लिए ये आवश्यक है ना। और उसके बाद बेस्ट लीडर्स आर अमर्ज ड्यूरिंग डिफिकल्ट सिचुएशन और फेसिंग चैलेंजेस, और सबसे अच्छे लीडर तब निकल कर आते हैं जब सिचुएशंस बहुत ही डिफिकल्ट होती हैं, है कि नहीं, और उसके बाद बहुत ही चैलेंजेस होते हैं। एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो है, बट देन वर्चुअल प्लेटफॉर्म में ये परेशानी होती है कि वो वीडियो सही तरीके से ऑडियो वीडियो पहुंच नहीं पाता है, लेकिन हमें उसके बारे में बताना ज़रूर चाहूँगी। आप लोग उसको यूट्यूब में भी देख सकते हैं। एक बार ऐसा होता है कि एकदम आंधी तूफान बहुत जोर से आया होता है, और उस आंधी तूफान की वजह से बड़े बड़े पेड़ जो हैं शहर में जड़ समेत जो हैं उखड़ कर गिर चुके होते हैं। एक ऐसा ही बहुत मोटा सा पेड़ जो है उखड़ कर रास्ते पे गिर चुका है, और रास्ते पे गिरा इस तरह से पड़ा है कि उसके उस तरफ सारी की सारी ट्रैफिक जो है थम गई है, कोई भी आ जा नहीं पा रहा है कि नहीं। तो अब क्या करें, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस वाले भी है वहाँ पर, नेता भी है वहाँ पर जो फ़ोन लगा रहे हैं और लोगों को बुला रहे हैं, जिनका भी वो काम है कि भाई आइए और इसे निकालिए ताकि हम यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसको बहाल कर सकें, हम यहाँ पर जीवन को सामान्य कर सकें। और कुछ लोग हैं जिनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, उनको लगता है कि ठीक है सबके हर किसी को जाना है कि नहीं, जिसको ज़्यादा जल्दी है वो उसको पहले उठाएगा, उठाने दो, हमको तो कोई जल्दी नहीं बची, हम जाएंगे आराम से। ऐसे भी कुछ लोग हैं। कुछ लोगों को इन सभी चीज़ों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, एकदम आराम से सोए पड़े हैं। और तभी एक नन्हा सा 6 साल का बच्चा जो बस में स्कूल जा रहा था, अपने बैग को स्कूल बस के सीट पर रखता है, नीचे उतर कर आता है और उस बड़े से पेड़ तो नहीं, वृक्ष ही कहूँगी, उसके तने को धक्का मारना शुरू करता है। अब सोचिए ये क्या मुमकिन है कि वो उस तने को हटा सकेगा? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी संभव है ही नहीं। लेकिन होता क्या है, उसके देखा देखी उसके बस में जितने स्कूल के बच्चे थे वो सारे उतर कर आ जाते हैं, और इन बच्चों को देखकर जो नौजवान हैं वो जो है आते हैं, धक्का लगाना शुरू करते हैं। और इस प्रकार से वहाँ पे सड़क पर जो ट्रैफिक लंबी रुकी हुई थी वहाँ से सब धीरे 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 अपने गाड़ियों से उतर कर आते हैं और उसको धक्का लगाते हैं और उसको साइड कर देते हैं और ठीक हो जाता है। अब देखिए वो जो छोटा सा बच्चा था, मेरे नजर में वो लीडर है। क्यों? क्योंकि उसने एक विकट परिस्थिति से निकलने का रास्ता वहां पे उपस्थित सभी लोगों को सुझाया है। उसने बताया है कि अगर इस परिस्थिति से निकलना है तो फिर ये एकमात्र रास्ता है, किसी पर निर्भर मत रहो, समय को बर्बाद मत करो, आ जाओ, हम सब मिलकर कर सकते हैं। शायद इतनी बड़ी बड़ी बातें उसके दिमाग में नहीं थी, लेकिन उसने काम ऐसा शुरू कर दिया कि बाकी सभी लोग देखकर मोटिवेटेड हो जाते हैं और उसको निकालकर बाहर कर देते हैं। तो ये जो क्वालिटी है किसी भी इंसान की, है कि नहीं, जो अन्य लोगों को ज़्यादा बड़े सपने देखने पर, ज़्यादा बड़ा सोचने पर और ज़्यादा अपने लिमिट्स को पुश करने के लिए मजबूर कर दें। अगर आपकी सोच से आपके साथ रहने वाले लोग बड़े सपने देखने लगे, आपकी वजह से बड़ी बड़ी बातें सोचने लगे, आपकी वजह से अपने लिमिट्स को पुश करना शुरू करें, आपकी वजह से अपने आप को संभालना सीख जाएं, आपकी वजह से हर मुसीबत से निकलने का एक नया एंगल, एक नया दृष्टिकोण साथ में लेकर चले, तो ये मान के चलिए कि आप एक बहुत ही सफल नेतृत्व के गुणों से युक्त मनुष्य हैं। आप में वो सारी की सारी लीडरशिप
क्वालिटीज़ हैं। और सबसे बड़ी बात जो लीडर में होनी चाहिए वो ये कि एक्सेप्ट द चेंजेस। उसे ये समझना पड़ेगा कि आज जो है वो कल नहीं रहेगा और मुझे कल के लिए अलग तरह की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। कल की मुसीबतें अलग हो सकती हैं, तो उसके लिए अलग तरीके की स्ट्रैटेजी मुझे बनानी पड़ेगी, है ना। तो ये चेंजेस को एक्सेप्ट करना आना भी एक लीडर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और उसके बाद एक्सेसिबल और ट्रांसपेरेंट रहना ज़रूरी है। एक्सेसिबल का अर्थ मतलब ये हुआ, समझ लीजिए आप एक टीम में काम कर रहे हैं, समझ लीजिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो मैं स्टूडेंट्स को संबोधित करके कहती हूँ, चलिए आपके कॉलेज में एनुअल फंक्शन होने वाला है और उस एनुअल फंक्शन के अंतर्गत आपको जो है जिम्मेदारी दी गई है कि यू विल बी द लीडर ऑफ द होल टीम और आपको अपने टीम को लेकर आगे चलना है और इस एनुअल फंक्शन को बहुत सक्सेसफुली करना है। तो सबसे पहले आप एक्सेसिबल होना चाहिए, अर्थात लोग आप तक पहुंचने चाहिए, अर्थात आपका स्वभाव इस प्रकार का होना चाहिए कि लोगों को आपसे बात करने में, अपनी बात आपके सामने रखने में, अपने दृष्टिकोण को साझा करने में किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो आराम से आपसे आके बात कर पाएं, आपसे सारी चीज़ें डिस्कस कर पाएं, अपनी जो भी सलाह हैं या अपने जो भी विचार हैं या उनका जो भी प्लान ऑफ एक्शन है वो आपके सामने रख सकें। अर्थात आपका स्वभाव जो है एक्सेसिबल हो और उसके बाद ट्रांसपेरेंट, अर्थात आपने कोई भी चीज़ ऐसे छिपा के नहीं रखनी कि भैया ये वाला पत्ता मैं नहीं खोलूंगा, ये तो मेरा अपना है, लास्ट में ये सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम का सब लोग डंका बजाएं, मैंने किसी से कुछ शेयर नहीं करना, करने तो जो कर रहे हैं, मैं तो वो इवेंट वाले दिन ऐसा करूंगी कि सब लोग मेरे क्या कहते हैं, सब के सब मेरे मुरीद हो जाएं या मेरे फैंस बन जाएं। ऐसे टीम नहीं चलती। आपको ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए, अर्थात अपने मन की सभी बातें, अर्थात जो भी आपका प्लान ऑफ एक्शन है, आप जो भी करना चाहते हैं या आपका जो भी लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने के लिए आपने क्या योजनाएं बनाई हैं, वो सारी योजनाएं आपको अपने पूरे टीम के सामने रखने की ज़रूरत है। और जब आप ऐसा करेंगी तब धीरे धीरे आपके पास सजेशंस आने लगेंगे और उसके बाद जो है आप खुद ही देखेंगे कि कितने अच्छे तरीके से आप अपने कार्य को या अपने लक्ष्य को पाने की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं, है ना। और हाँ, टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टास्क एज वेल एज रिजल्ट। कई बार ऐसा होता है कि हम सक्सेस का तो सारा श्रेय अपने ऊपर ले लेते हैं, अरे दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ मी, मैंने दिन रात मेहनत की है, इन सभी को काम पे लगाया है। आपको क्या लगता है कि ये लोग सब ऐसे काम कर लेते? अरे साहब बिल्कुल भी नहीं, ये तो मैं हूँ जो दिन रात इनके पीछे पड़ी रही, हर किसी को पुश करती रही, हर किसी को बोलती रही, तब जाके इन्होंने जो काम किया, है ना। तो आज अगर ये सक्सेस मिला है तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ मी, और कल समझ लीजिए वो फेलियर हो गया, आप कहें कि इतना बोला, दिन रात इनके पीछे पड़ी रही, लेकिन मजाल है किसी ने भी मेरी बात सुनी, ये सुन लेते मेरी बात तो आज ये सक्सेसफुल हो जाता। इसीलिए मैंने तो अपनी तरफ से मेहनत की, आई एम द बेस्ट, और जो कुछ भी हुआ है आज इनकी वजह से हुआ है ना। हर तरह से टास्क की भी जिम्मेदारी लेने की मतलब कुवत आप में होनी चाहिए, एंड एज वेल एज उसका जो रिजल्ट्स जो भी हो, अच्छा है बुरा है, जनरली एक अच्छा लीडर जो है अच्छे रिजल्ट्स का श्रेय जो है अपने पूरी टीम को देता है, जिसमें वो खुद भी उस टीम का हिस्सा होता है। और जब फेलियर्स आते हैं तो वो कहता है कि मेरे संचालन में कहीं कोई कमी रह गई थी, मेरे समझ में या मेरे समझाने में कोई कमी रह गई थी। ये एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। उसके बाद और हम देखें तो सबसे पहली बात जो है, एक लीडर के लिए एक ग्रुप की ज़रूरत होती है, आपको एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये मान कर चलिए कि हम हर काम नहीं कर सकते, मुझ में चाहे कितनी ही क्वालिटीज़ क्यों ना हो, लेकिन मैं हर काम नहीं कर सकती। मुझे जो है एक टीम की ज़रूरत पड़ती ही है, लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और शुड नो whom टू कीप वेयर, और मुझे ये पता होना चाहिए कि किसको कहाँ पे रखना
चाहिए। कोई बोलने में अच्छा है तो फिर उसको हम एंकरिंग की जिम्मेदारी दें। कोई डांस अच्छा करता है तो हम उसको डांस को संभालने की पूरा डांस का सेक्शन उसे दे दें। किसी का मतलब कोई बहुत अच्छा गाता है, म्यूज़िक का सेक्शन दे दें। किसी को खाने की अच्छी खबर है, जो खाना बहुत अच्छे से खाता है उसको रिफ्रेशमेंट्स की खबर दे दें। और जो बहुत चुपचाप काम करने वाला है, जो बाहर नहीं दिखता है, उसे ऐसे काम दीजिए जो बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, और विश्वास कीजिए वो पीछे रहकर सारे के सारे काम आपके लिए करके देगा। तो किसको कहाँ पे रखना है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किससे कब कैसे बात करनी है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। किसी किसी को एक वर्ड ऑफ मोटिवेशन काफ़ी होता है, किसी किसी को लगातार मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है। कभी कभी लोग ऐसे भी होते हैं, मुझे मतलब पता है, मतलब मैंने ऐसे इंसान के साथ काम किया है जो हमेशा ये बोलती थी, जब भी उनकी तारीफ़ करो, नहीं 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 मैडम मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो सामने आकर कभी दिखती नहीं थी, कभी उन्होंने सामने आकर काम नहीं किया, वो हमेशा पीछे रहती थी। लेकिन ऑन द दी डे, जिस दिन इवेंट होता था उस दिन वो चाहती थी कि लोग उनकी तारीफ करें और कहें कि ये मैडम तो ऐसी हैं जो कभी सामने नहीं दिखती, लेकिन सारा काम ये अकेली संभाल लेती हैं। ये नहीं होती तो पता नहीं हमारा काम कैसे होता। अगर आप नहीं कहेंगे तो वो फिर कुड़ते रहेंगे, ये बोलेंगे इनके लिए तो कुछ भी कर लो। एक बोल मुंह से मतलब प्रशंसा के फूटते नहीं हैं। वो सामने नहीं दिखाई देंगे लेकिन उनको प्रशंसा चाहिए। तो किसी को मोटिवेशन चाहिए, किसी को प्रशंसा चाहिए, है ना। किसी को एक नेगेटिव मतलब मोटिवेशन भी, नेगेटिव मोटिवेशन मतलब मैं बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई मतलब स्टूडेंट है या आपका कोई फ्रेंड है जो अच्छा नहीं कर रहा है कि नहीं, रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ है, तो फिर उसको ये एहसास दिलाइए कि उसने गलत किया है। और कभी कभी वो नेगेटिविटी उनके मन में, मतलब वो नेगेटिव जो बातें हैं वो दिल पर लगाकर वो कहते हैं कि नहीं अब तो मैं करके दिखा दूंगी, अब तो मैं करके दिखा दूंगी, है ना। तो आपको समझना पड़ेगा कौन इंसान कैसा है। मिक्स मैच नहीं कर सकते। जिसको आपको तारीफ करनी है उसको आपको तारीफ ही करनी है। उसको आपने ये नेगेटिव मतलब फीडबैक दिया तो फिर वो तो बिल्कुल भड़क जाएगा, है ना। कुछ भी कर लो यार, इनको तो फर्क ही नहीं पड़ता। प्यार से बोलो, वो कुछ भी करवा सकते हैं। कुछ लोगों को प्यार से नहीं, थोड़ा डांट कर बोलना पड़ता है। किसी किसी को वस्तु स्थिति समझा कर बोलनी पड़ती है, किसी किसी को यहाँ से डील करना पड़ता है हृदय से, किसी किसी को दिमाग से डील करना पड़ता है। और एक लीडर में वो काबिलियत होती है कि उन सभी को पहचाने कि किसका स्वभाव किस प्रकार का है और किसको कहाँ पर रखना चाहिए, ताकि उनका काम जो है सफलतापूर्वक निकल जाए। और मैं बार बार कह रही हूँ, लीडरशिप का मतलब किसी बहुत बड़े पोजीशन पर बैठकर ही नहीं, हर दिन का जो काम होता है ना, डे टू डे लाइफ, उसमें भी लीडरशिप की ज़रूरत होती है। मैं एक फैमिली काउंसलर भी हूँ। रिसेंटली एक माँ का मेरे पास फ़ोन आया, वो अपनी बेटी के बारे में बता रही थी। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि वो बहुत लोनली रहती है, अपने आप में खोई रहती है, मैडम शायद डिप्रेशन में जा रही है, मैं क्या करूँ। तो बोलती वो दिन भर क्या करती हैं घर में, आपका कुछ काम उम करती? नहीं मैडम, एक अकेली बेटी है, हमने उसको बड़ी प्यार से पाला है, इसलिए हम काम उम नहीं करवाते। लेकिन मैंने कहा कि जब तक आप उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, काम मतलब काम करवाना नहीं, कुछ समय उनका घर की तरफ, घर के लोगों की तरफ होना चाहिए। और ये इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जब तक आप ये इन्वॉल्व नहीं करेंगी, वो खुलकर आपके साथ कभी बात ही नहीं करेंगी। तो उसे आप अपने साथ रखिए। एंड ऐसा 15 दिन उन्होंने किया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोले कि नहीं मैडम फ़र्क पड़ रहा है। अब वो खुद ही आकर मुझसे कहती है कि मम्मी मैं क्या काम करूं बताओ। राइट, है ना। तो समझने की ज़रूरत है कि किसको किस तरह से आप सान पर लगा सकते हैं। हर किसी को एक ही धार नहीं चलती, हर किसी के धार अलग अलग है, क्योंकि हर किसी की पर्सनालिटी अलग अलग है। तो ये समझ भी लीडर को चाहिए। घर चलाने के लिए भी लीडरशिप क्वालिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हर जगह लीडरशिप क्वालिटीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ हम एक बहुत ही अच्छा सा जीवन जिसमें खुशियाँ हों, उसे हम शायद ही पा पाएँ, है ना। कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ, ऐड स्किल्स, नॉलेज फॉर इफेक्टिवनेस। आप लगातार अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, स्किल्स डालिए, नॉलेज अपना बढ़ाइए,
अपने कम्युनिकेशंस में इफेक्टिवनेस लेकर आइए, क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें आप नहीं जोड़ पाएंगे तब तक मैं बता दूं कि आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। क्योंकि लीडर मतलब जो आपके टीममेट्स हैं वो ये मान कर चलते हैं कि ये हमसे सभी चीज़ों में श्रेष्ठ हैं। जहां आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो समझ लीजिए तुरंत आपके टीम मेंबर्स बोलेंगे, अरे यार ये हमेशा एक ही बात को लेकर बैठ जाती है, हमेशा एक ही जैसे इसके विचार होते हैं, एक ही जैसा प्लान होता है, हम तो थक गए यार, कोई क्रिएटिविटी नहीं, कुछ नहीं, कौन बनाता है इसको लीडर। ये बातें तुरंत निकल जाएंगी। तो इसीलिए आप अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। देयर इज नथिंग कॉल्ड इंस्टेंट लीडरशिप। अभी के अभी लीडर नहीं बन जाता कोई। लीडरशिप या लीडर बनने का जो मादा होता है ना, वो मनुष्य के स्वभाव में धीरे धीरे बनता है कि नहीं। और उसको आपको समय देना पड़ेगा। आपके पास जब अपॉर्चुनिटीज आती है उनको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यू आर नॉट ऑल इन ऑल, जैसे मैंने कहा, एज अ लीडर डोंट लेट योर सक्सेस अफेक्ट योर माइंड एंड फेलियर योर हार्ट। बिल्कुल भी नहीं। सक्सेस अपने माइंड पर मत लेना, घमंड आ जाता है। फेलियर को अपने हार्ट पर मत लेना, आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे। फेलियर को अपने माइंड पे लीजिए और स्ट्रैटेजीज बनाइए कि अभी मैं क्यों फेल हुई, क्यों इस बार मतलब इस तरह से मेरा काम रुक गया, या मैं अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर पाई। और उसको आप पूरा अपने आप को क्या कहते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। और उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पर गलत है। अगर आपने दिल पर ले लिया, यू विल गेट इनटू लॉट ऑफ नॉनसेंस इमोशनल प्रेशर की वजह से। लेकिन वहीं पर आपने दिमाग से सोचा तो फिर आपको उसका आंसर जरूर मिल जाएगा। जस्ट मेक वे आउट, जस्ट हैंड ओवर द बैटन वंस द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर, जस्ट लाइक रिले रेस। बैटन देते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बन गई तो बन गई, है ना। जैसे अमूमन अभी एक बहुत अच्छा सा सीरियल आता है, देखती हूँ मैं, अनुपमा, पता नहीं कितने लोग आप देखते हैं। उसमें एक सास है, टिपिकल सास जिसके बारे में सुनते हैं। वो एक ही बात कहती है, देख जब तक मैं जिंदा हूँ मैं सास हूँ, तू सास बन भी गई तो भी मैं तेरी सास मैं ही रहूंगी, देख लेना। मतलब आप अपना बैटन दे नहीं रहे। रिले रेस में देखा है ना, 4 की टीम होती है, एक लैप लेकर आता है, दूसरे को बैटन देता है, फिर वो दूसरा फिर आगे दौड़कर जाता है, तीसरे को बैटन देता है, फिर चौथे को बैटन देता है। चारों का कोऑपरेशन हो तभी जीतते हैं। उसी तरह से लीडरशिप भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको हैंड ओवर करनी पड़ेगी। आपने अपने पास ही रख लिया तो फिर बहुत सारी परेशानियां जो हैं आने लग जाती हैं। इसीलिए उसको हैंड ओवर करते रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब अपन बात करते हैं विमेन लीडरशिप पर, है ना। हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, दुर्गोत्सव मना रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं आपको, हम महिलाओं के लिए लीडरशिप क्वालिटी से युक्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू नो वाई, बिकॉज वी आर एक्सपर्ट्स इन मल्टीटास्किंग। 50 तरह के काम करते हैं और उन 50 तरह के कामों को संभालने के लिए सही तरीके की सोच और सही तरीके की लीडरशिप एटीट्यूड का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो कुछ फैक्ट्स हैं, ये सिर्फ पढ़ लीजिएगा, फैक्ट्स हैं। देखते हैं। देयर आर 17% ऑफ मेंबर्स ऑफ नेशनल पार्लियामेंट्स वर्ल्ड वाइड आर वुमेन। पूरी दुनिया में 17% पार्लियामेंट में एवरेज, पूरी दुनिया की बात हो रही है। इंडिया में 33% सीट्स लोकल गवर्नमेंट लेवल पर जो हैं महिलाओं के लिए सुरक्षित होती हैं। हम यहाँ पे उस लीडरशिप की बात कर रहे हैं जो बहुत बड़ी लीडरशिप है, लेकिन उसके साथ साथ हम सामान्य जीवन की भी बात साथ में करते जाएंगे। इन यूएस वुमेन होल्ड ऑलमोस्ट 50.3% ऑफ ऑल मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल पोजीशंस। भारत में अभी तक वो स्थिति पे हम अभी नहीं आए हैं, है ना। इन इंडिया अगर हम बात करें, इंदिरा नूई की बात सुनी होगी आपने, शी सीईओ ऑफ पेप्सी। अखिला श्रीनिवासन, एमडी श्रीराम इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। चंदा कोचर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईसीआईसीआई बैंक। एकता कपूर, क्रिएटिव डायरेक्टर बालाजी फिल्म्स। प्रिया पॉल, चेयरमैन एपीजे पार्क होटल्स। रवीना राजकोहली, एक्स प्रेसिडेंट स्टार न्यूज। और इस तरह से अगर आप देखें तो फिर बहुत सारे नाम हैं। लेकिन सोचने वाली बात क्या, सोचने वाली बात यह है कि हम अभी भी इन्हीं गिने चुने नामों को लेते आए हैं जब बड़े लीडरशिप की बात आती है। तो परेशानी कहाँ पर है ना। 4 चीज़ें हैं जो हमको रोकती हैं। वो 4 बातें क्या हैं, वो बैरियर्स क्या है। नंबर 1, प्रेजुडिस मतलब क्या। प्रेजुडिस का मतलब होता है कि स्त्री और पुरुष के बीच पक्षपात।
ठीक है, किसी भी प्रकार का पक्षपात है कि नहीं। हमारे दिमाग में हमेशा आता है कि अरे इक्वल क्वालिफिकेशन के होते हुए भी क्यों पुरुषों को बहुत जल्दी जो है प्रमोशन मिल जाते हैं, हमको क्यों नहीं मिलते। हम अपने जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में हो, कॉलेजेस में हो, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में हो, जब बड़ी जिम्मेदारी की बात आती है तो ये हमेशा लगता है कि महिलाएं शायद नहीं कर पाएंगी और पुरुष ही उसको अच्छे से कर पाएंगे। वजह क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस टू वुमेन्स लीडरशिप, व्हाई डू पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी अ वुमेन इन अ लीडरशिप रोल। क्यों ऐसा लगता है कि अगर एक महिला लीडर है तो हम काम नहीं करेंगे, हम उसके साथ काम नहीं कर सकते। जब महिला रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं तो हम उसको बड़े आसानी से हिटलर का नाम दे देते हैं। हम कहते हैं इट्स वेरी टफ टू वर्क विथ वुमेन। हम बड़े आराम से कह देते हैं कि महिलाएं जो हैं उनको पावर दे दो, शी बिकम वर्स्ट। क्यों? क्योंकि हमेशा हमने उनसे सॉफ्टनेस ही एक्सपेक्ट किया है। जब वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन और इन सब पर अड़ जाती है तो हमको उनका ये रूप बर्दाश्त नहीं होता। ये ब्लॉक्स है, मेंटल ब्लॉक्स हैं, है ना। लीडरशिप स्टाइल्स, व्हाई डू वुमेन ऑफन स्ट्रगल विथ टेकिंग लीडरशिप। क्यों नहीं महिलाएं ले पाती हैं। मैं नहीं लूँगी, सर आप कर लीजिए ना, सर आप कर लीजिए ना, नहीं सर मेरे से नहीं होगा, मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है। हमें खुद में वो हम जज्बा नहीं होता कि हम आगे बढ़कर ये काम करें, है ना। और उसके बाद उसके पीछे बड़ी वजह है डिमांड्स ऑफ फैमिली लाइफ। व्हाई डू वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू स्ट्रगल विथ वर्क लाइफ बैलेंस। अभी भी वर्क लाइफ बैलेंस में क्यों हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों हमने आउटसोर्स करना नहीं सीखा। क्यों हम क्या कह सकते हैं टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख रहे हैं। क्यों हम इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं सीख रहे हैं। क्यों हम अपने आप को बैरियर्स में और छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बंद करके रख रहे हैं। क्यों हम नहीं सोचते कि इस चीज़ को बहुत क्रिएटिवली भी हैंडल किया जा सकता है और अपना काम कर सकते हैं, है ना। अभी भी वर्क लाइफ बैलेंस के पीछे जो है हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल अभी तक कर रहे हैं, राइट। तो अब हमको ज़रूरत है स्वॉट एनालिसिस करने की कि आखिर महिलाएं एक अच्छी लीडर क्यों नहीं बन पा रही या लीडरशिप में क्यों नहीं आ पा रही। अभी भी सिर्फ और सिर्फ मुट्ठी भर क्यों है। अभी भी इंडिया में 33% रिजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। क्यों नहीं हम अपने आप को बड़े ग्रेसफुली, अपने आप को अपनी पूरी पावर के साथ, अपने आप को अपनी काबिलियत के साथ खड़ा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, है ना। स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स हम देखते हैं। स्ट्रेंथ, एक महिला की स्ट्रेंथ क्या है जिसकी वजह से एक बहुत अच्छी लीडर वो बन सकती हैं। घर से लेकर, अपनी गृहस्थी से लेकर, अपने काम से लेकर, समाज से लेकर राष्ट्र को भी संभालने की काबिलियत उसमें है। क्यों है, उसकी ताकत क्या है। सबसे पहले एबिलिटी टू शेप एंड रीशेप अ टीम। वो बहुत अच्छे से जानती है कि कौन से टीम, क्योंकि उसने हमेशा रिश्तों के साथ अपना जीवन जिया है और रिश्तों के साथ रहते रहते उसको ये समझ है कि किसमें कैसी काबिलियत है और टीम कैसे बनानी चाहिए, है ना। उसमें लॉयल्टी है, एम्पैथी है, कंपैशन है और सेंसिटिविटी है। ये सारी की सारी खूबियाँ महिलाओं में होती हैं। यहाँ पे मैं बार बार कह रही हूँ, पुरुषों के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ महिलाओं में ये महिलाओं को ईश्वर की देन है। ये मतलब उनकी बनावट ही ऐसी, महिलाओं की बनावट ही ऐसी है कि दे आर मोर लॉयल, एम्पैथेटिक एंड कंपैशनेट एंड सेंसिटिव, है ना। आप देखेंगे पुरुषों को बहुत सारी नौकरियों को बदलते हुए, लेकिन महिलाएं इतनी सारी नौकरियां नहीं बदलती। एक कंपनी में रहती हैं तो उन्हीं के साथ वो लगी रहती हैं, है ना। तो ये लॉयल्टी, मतलब मैं इसकी बात कर रही हूँ। गुड एट ग्रोइंग रिलेशनशिप्स एंड बिल्डिंग ब्रिजेस, यस, क्योंकि घर में रिश्तों को जोड़ते लोगों से संपर्क बनाते दुनियादारी और इन सभी को निभाते उसे बहुत अच्छी तरीके से ये आ गया है, उसको ये बहुत अच्छी तरीके से आ गया है कि किस तरह से जो है लीडरशिप, किस तरह से रिश्तों को बनाया जा सकता है, किस तरह से रिश्तों के बीच के गैप्स को ब्रिज किया जा सकता है। स्किल इन मल्टीटास्किंग में तो वो माहिर है, हर तरह से वो मल्टीटास्किंग कर सकती है, राइट। अनेक सारे काम एक साथ कर सकती हैं, है ना। पुरुष ऐसे नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक ही काम करते हैं। इसीलिए देखना, घर में सारे काम करने के बावजूद, जैसे मैं वर्किंग वुमेन हूँ,
हाउसवाइफ भी हूँ, मैं एक ट्रेनर हूँ, एक पैशनेट ओरेटर हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैवल्स करती हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं थकती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग इस बात के लिए ट्यून्ड है कि मैं मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। एबिलिटी टू सी बोथ द बिग पिक्चर एंड स्मॉल डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेलिंग्स भी उसको समझ में आती है ना। जैसे काम वाली बाई से बोलते हैं, ए कोने में देख थोड़ा सा कचरा रह गया, निकाल 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 उसको। छोटी छोटी बारीकियाँ जो कोई और नहीं कर सकता वो स्त्रियां कर सकती हैं, ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उसके बाद काम, प्रेशर में भी कामली काम करती हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया जहाँ पे लोग फ़ोन पर लगे हुए हैं, खाना कहाँ से आएगा देखने की कोशिश कर रहे हैं, घर के कुछ लोग पैनिक हो रहे हैं, और कब माँ चुपचाप किचन में जाती है और काम कर लेती है और खाना तैयार हो जाता है 20 लोगों का, हमको पता भी नहीं चलता। या नहीं तो वो अपने साथ कुछ लोगों को लगा लेती है और कहती है कि चलो आ जाओ मेरे साथ और चलो काम पे लग जाओ, ये हमको पता भी नहीं चलता। तो प्रेशर में बिल्कुल काम रहकर मतलब अपना काम जो है, मतलब शांत रहकर, कूल रहकर अपना काम कर लेती है, ये उसकी ताकत है ना। हैंडल क्राइसिस सिचुएशन वेरी वेल, क्राइसिस को हैंडल करने में महिलाओं से कोई बाजी नहीं मार सकता, ये हमारी स्ट्रेंथ्स है जो हमको बहुत अच्छा लीडर बना सकता है ना। कैन वियर मेनी हैट्स, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारे रोल प्लेस हम कर सकते हैं, हम एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। हमारे जैसा फॉलोअर कोई नहीं हो सकता, हमारे जैसा कमिटेड इंसान कोई नहीं सकता। ये सारी खूबियां हैं जो ईश्वर ने हमको दी हैं। हम बहुत सारे हैट्स जो हैं पहन सकते हैं, मेक देयर जॉब लुक एफर्टलेस। इतने काम करने के बाद भी बिल्कुल एफर्टलेसली वो सारे काम कर लेती हैं, राइट तो ये उनकी काबिलियत है। हैव हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से हैंडल करना है, ये कोई महिलाओं से सीखे, राइट तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसके स्ट्रेंथ्स हैं। स्वाति मेरे पास कितना 5-10 मिनट और? हाँ मैम। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। तो अब हम वीकनेसेस की बात करते हैं। हमारी कमजोरियां क्या? हमारी कमजोरियां भी है इमोशनल बिहेवियर, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस तो है, लेकिन हम बड़ी जल्दी इमोशनल भी हो जाते हैं। समझ में आई कि बात? बहुत ही जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, और जिसका फायदा अक्सर लोग उठाते रहते हैं। एंड वी फील लाइक, देखो मेरे को तो डोरमैट बना दिया, मैंने क्या किया? मैंने तो प्यार ही किया ना, है ना। परिवार से प्यार किया, रिश्तों से प्यार किया, घर से प्यार किया, एंड आज मेरी क्या हालत हो गई है। एंड वी बहुत जल्दी हम भावनाओं में बह जाती हैं। लैक ऑफ अथॉरिटी हम नहीं चला सकते, हम वो ऊंची आवाज़ में अथॉरिटी नहीं ला सकते, और जहाँ लाते हैं वहाँ पे तुरंत पीछे खींच दिया जाता है, बिकॉज ये समझा जाता है कि एक महिला के लिए, महिला और अथॉरिटी ये दो चीज़ें दे डोंट गो हैंड इन हैंड। हम उस पोजीशन को बनाए नहीं रख पाते हैं, ये हमारी कमजोरी। लोअर एक्सपेक्टेशंस देन मेन, हम छोटी छोटी चीज़ों में संतुष्ट हो जाते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों में संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ ठीक है ना, इतना मिल गया, हाँ बाकी काफ़ी है, काफ़ी, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, मैं अपने घर और परिवार को संभाल लूँ वही काफ़ी है ना, नौकरी करने की क्या ज़रूरत है ना। या नहीं तो मुझे ये इतना मिल गया, अरे ये तो भगवान की देन है, इतना मिल गया, इतना तो कितने लोगों को नहीं मिलता, मुझे मिल गया, आई एम वेरी हैप्पी। तो बहुत कम एक्सपेक्टेशंस होते हैं, हम ऊंचे सपने नहीं देखते, ऊंचे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, ऊंचे छलांग मारने से हम डरते हैं, है ना। और डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं की ये भी एक बहुत बड़ी वीकनेस है। वी स्टार्ट डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन सो मेनी थिंग्स, हम एक वो यूनिसन लाकर काम नहीं कर पाते हैं। उसके बाद नेटवर्किंग, भैया हमारा नेटवर्किंग बहुत पोर है, बहुत पोर है कि नहीं। हम अगर आज क्या कह सकते हैं, सोशल मीडिया में भी जुड़े हुए हैं, तो कौन सी कितना समय हम सोशल मीडिया पर काम की बातों के लिए बिताते हैं। एक बार सोचिए, हम इधर उधर की बातें करते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अपने ड्रेसेस ये वो सारे अपडेट्स करते हैं, राइट। लेकिन नेटवर्किंग जो कि हमारे सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है, वो कहाँ तक हम करते हैं। हमारी नेटवर्किंग बहुत पोर है, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास क्या क्या हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास। हम ये कहते हैं कि हमको नहीं मिल रहा, लेकिन देखिए भारत सरकार ने हमारे संविधान में स्त्री और पुरुष को कभी भी अलग नहीं किया है, कभी भी अलग नहीं किया। हमको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, हर जगह है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलता है अभी भी,
है ना। रिजर्वेशन अभी भी अब बल्कि ज़्यादा ही है महिलाओं को पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा ही दिया गया है। राइट टू एजुकेशन, कहाँ बोला गया है कि स्त्रियों को 5वीं के बाद नहीं पढ़ाना है, लड़कियों को नहीं पढ़ाना? ये तो माता पिता हैं जो नहीं पढ़ाते हैं, ये तो हमारा वो परिवेश है, हमारी जो सोच है हमको रोक रही है। लेकिन हमारे मतलब सरकार ने, हमारे संविधान ने हमको सब कुछ इक्वली ही दिया है। पॉलिटिकल राइट्स, आपके पास सारे पॉलिटिकल राइट्स है। आपको वोट देने का हक है, आपको मतलब चुनाव में खड़े होने का हक है, आपको प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बनने का हक है, आपको चीफ मिनिस्टर बनने का हक है, आपके पास सारे पॉलिटिकल राइट्स है। लेकिन आप उसका इस्तेमाल कहाँ करती हैं? हमारे जैसे उड़ीसा में, मैं जानती हूँ कि पूरे देश में यही होता है। उड़ीसा में क्या होता है कि कुछ कुछ सीट्स जो होती हैं ना, एमएलए सीट्स, वो होती हैं, या नहीं तो फिर जो अपने पंचायत की सीट्स हैं, या नहीं तो फिर जो ब्लॉक के जो सीट्स हैं, ये जो कॉर्पोरेट मतलब ये जो सीट्स हैं, ये सीट्स जो होते हैं वुमेन सीट्स होते हैं, रिजर्वेशन वाले सीट्स होते हैं। तो पुरुष क्या करते हैं, अपनी पत्नियों को वहाँ पर खड़ा कर देते हैं, जीत जाते हैं। वो बेचारी घर में खाना बना रही होती है और उसके बदले में काम ये सारा करते हैं, उसको खाली ब्लाइंडली अपना सिग्नेचर देना होता है। अब बोलिए, मेरे पास तो राइट्स हैं, लेकिन मैं उस राइट को एक्सरसाइज कर रही हूँ क्या? ये प्रश्न है। हम नहीं करते हैं। हमारे पास सब कुछ है, हमको सब कुछ ईश्वर ने भी दिया है, सरकार ने भी दिया है, एवरीथिंग वी हैव। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कमी हमारे पास है। लीगल राइट्स सारे हैं। इनफैक्ट महिलाओं को आज पुरुषों से भी कई ज़्यादा लीगल राइट्स हैं हमको, लेकिन उनके बारे में नहीं पता है। ठीक है, इग्नोरेंस, जस्ट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस हम अपने इन अपॉर्चुनिटीज़ को जानते नहीं हैं और इसीलिए हमेशा पीछे पड़ जाते हैं। लीडरशिप ही नहीं, अपने जीवन में भी पीछे पड़ जाते हैं। थ्रेट्स, ठीक है, इन सभी के बावजूद थ्रेट्स हैं, मुसीबतें हैं हमारे पास। वो मुसीबतें हैं सेक्सुअल हैरासमेंट, आज भी इसका एक बहुत बड़ा खतरा है। हर दिन इससे हम जूझ रहे हैं। फैमिली कमिटमेंट्स, इफ़ वी आर कमिटेड सो वी आर कमिटेड, वी आर कमिटेड सो वी आर कमिटेड। वो कमिटमेंट और कोई नहीं लेता। जैसे बच्चों की जिम्मेदारी माँ की है, हम खुद ही बोलते हैं कि नहीं आप जाओ ऑफिस में, संभाल लूंगी, आई विल टेक लीव। घर में किसी की ज़रूरत है, आई विल टेक लीव, डोंट वरी, है ना। कभी ये नहीं बोला कि लुक आज मेरी मीटिंग है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे जाना है, आज आप लीव ले लो घर में। ये इस तरह की बातें ही नहीं होती। इस तरह की बातें मीन्स मैं यहाँ पर झगड़े की या अथॉरिटी की बात नहीं कर रही, इस तरह की समझदारी ही नहीं होती, है ना। सो फैमिली कमिटमेंट स्ट्रेस है, सपोर्ट नहीं मिल पाता। देखिए हम सब एजुकेटेड लोग हैं जो ये सुन रहे हैं, मैं जो बोल रही हूँ आप सब सुन रहे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं, हम सब वी आर वेरी फॉर्चुनेट एंड वी आर वेरी प्रिविलेज्ड। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं, सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं, और हम अब इतना सब कुछ होते हुए भी हम उसको एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा देश का, मतलब 100 में 80 महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन उन्हें पता भी नहीं है और फैमिली सपोर्ट उनके पास नहीं होता है। ट्रेडिशनल माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी, ये भी हमको कल को मैं एक टीम का लीडरशिप तो लेना चाहती हूँ, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको हैंडल करना चाहती हूँ, लेकिन बाबा रात को 11 बजे बज जाएंगे, 12 बजे मैं घर आऊँगी, घर वाले क्या बोलेंगे, गली मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे, रहने देना, मेरे को क्या करना है, मैं चुपचाप जाके घर में रहती। ट्रेडिशनल माइंडसेट लोगों के दिमाग में, स्त्री ऐसी होनी चाहिए। वी आर नॉट ब्रेकिंग द बाउंड्रीज, वी आर नॉट ब्रेकिंग द, मतलब हम लोगों के थॉट्स को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उनको और पक्का 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 करते चले जा रहे हैं। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल जैसे चारी सर ने बोला था, चेंज एजेंट्स, हम महिलाओं को चेंज एजेंट बनना है। हम अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं, मैं, स्वाति, डॉक्टर मराठे, हम सभी हम अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब हम जो बैटन तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं बच्चों, तुम सारी लड़कियों के हाथ में दे रहे हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब तुम लोगों को ये माइंडसेट को तोड़ना है, लड़ झगड़ के नहीं, अपनी काबिलियत पर तोड़ना है। लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होता, काबिलियत पर तोड़ना है, लोगों में विश्वास दिलाना है कि ये मैं कर सकती हूँ। आज अगर मैं यहाँ बैठकर आपसे बात कर रही हूँ तो ये तभी संभव हो पाया है कि मैंने बार बार अपने जीवन में, घर में, परिवार में ये प्रूव किया है कि आई कैन डू दिस एंड आई हैव टू डू दिस, एंड एट द सेम टाइम इससे किसी को कोई नुकसान नहीं, है ना। और यहाँ पे मतलब ट्रेडिशनल माइंडसेट से हमें लड़ना होगा, उसे तोड़ना होगा। मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लाइफ, इसको भी हमें सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। सो अब आगे हम देखते हैं पॉइंट्स टू पॉन्डर। क्वेश्चन आंसर्स में आप जब क्वेश्चंस पूछेंगे तो फिर आगे और हम चर्चा करेंगे। अगर हम इससे जो भी पॉइंट्स हैं, क्या है टेक होम, क्या है इससे हमने क्या सीखा, क्या कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें मनन करना है, जिनके बारे में हमें पक्के तौर पर
सोचना है, उनका चिंतन करना है। क्या है वो बातें? द एबिलिटी टू लर्न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी अ लीडर कैन हैव। सीखने की इच्छा, ये कहना कि मुझे सब पता है इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ, ये कहने के बजाय मैं सीखना चाहती हूँ और सीख कर ही मैं जो है अपने कर्तव्यों को आगे बढ़ा सकती हूँ, है कि नहीं? एंड दूसरी बात, लीडरशिप इज नॉट अ पर्सन और अ पोजिशन, इट्स अ कॉम्प्लेक्स मॉरल रिलेशनशिप बिटवीन पीपल बेस्ड ऑन ट्रस्ट, ऑब्लिगेशन, कमिटमेंट, इमोशन एंड शेयर्ड विजन ऑफ गुड। मतलब ये आपसी समझ है हमारी, आपस के रिश्ते हैं हमारे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे के ऊपर विश्वास के साथ ही लीडरशिप जो है तय की जा सकती है। Leadership is about making others better as a result of your presence and making sure that impact lasts in your absence also. अर्थात आपके रहने से लोग बहुत अच्छा काम करें और न रहने पर भी, आपके एब्सेंस में भी लोग उतना ही अच्छा काम करें और हर हाल में हर मुसीबतों से, संघर्षों से लड़ने की क्षमता और काबिलियत उनमें आए। ये आपकी लीडरशिप है और ये हम महिलाओं को ईश्वर ने दी है। जैसे मैंने कहा बीज रूप में है, अब हम उसको कितना हवा पानी देकर बाहर निकालते हैं कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम इस बात का रोना नहीं रो सकते कि मुझे नहीं मिल रहा, मुझे नहीं मिल रहा, मुझे नहीं मिल रहा। ये देखो कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं उसे किस तरह से तराश कर बाहर निकालूं। देयर आर नेवर टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस। आप ऐसे हैं ही नहीं कि जो डिफरेंस नहीं ला सकते या कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। आप छोटे से छोटी तरह से, छोटे से छोटे तरीके से आप परिवर्तन ला सकते हैं और आप में ये काबिलियत है, इस बात को जान लीजिए। डू नॉट बी अफ्रेड टू मेक डिसीजंस। ये सबसे बड़ी समस्या है, हम डिसीजन लेने से डरते हैं। पता नहीं मैं अगर ये सोच लूँगी तो पता नहीं वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेंगे, मम्मी क्या सोचेगी, पापा क्या सोचेंगे, मम्मी और पापा ये मेरे को सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना? या नहीं तो फिर कोई भी काम करने से पहले हाउसवाइफ से वो 50 बार सोचती हैं कि पता नहीं ये डिसीजन अगर मैंने ले लिया इसका मेरे परिवार पे ऊपर कैसा असर पड़ेगा। कम ऑन, बी कॉन्फिडेंट। आपको जो डिसीजन लेना है लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ही कड़ा पेन किलर लेने के साथ एंटासिड खाना पड़ता है ना, उसके साइड इफेक्ट को दबाने के लिए, ठीक उसी तरह से एक उसके साथ का सपोर्ट सिस्टम्स को भी आप खड़ा कर लीजिए ताकि आपके डिसीजन से किसी को कोई परेशानी ना हो। अब आप बोलेंगे अच्छा तो घर भी मेरे को ही चलाना है, इसका मतलब आप कह रही हैं व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? सक्सेसफुल होने का मतलब, एक अच्छा लीडर होने का मतलब ये नहीं है कि आप घर और परिवार से अपने आप को तोड़ के रख लें, बिल्कुल भी नहीं। उन सबके साथ अगर मैं अपने आप को चला पा रही हूँ, अपने आप को खड़ा कर पा रही हूँ तो क्यों नहीं, है ना? डिसीजन लेने से हम नहीं डर सकते। डू नॉट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। और गलतियां करने से तो बिल्कुल भी ना डरें। क्यों? क्योंकि हम यही सोचते हैं कि मेरी इमेज ना खराब हो जाए। परफेक्ट बेटी वाली, परफेक्ट बहू वाली, परफेक्ट बनने की या परफेक्ट पत्नी वाली मेरी इमेज, परफेक्ट माँ वाली मेरी इमेज खराब ना हो जाए ना। करिए, गलतियां करिए, होती हैं, होने दीजिए, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि गलतियों से हम सीखते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डू स्वॉट एनालिसिस, समय समय पर ये स्वॉट एनालिसिस करते रहिएगा, क्योंकि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाते। हमको पता नहीं चलेगा कि मेरे में क्या कमजोरी आ गई है, मैं इसे दूर कैसे करूंगी। सो डू नॉट फॉलो वेयर द पाथ में लीड, गो इंस्टीड वेयर देयर इज नो पाथ एंड लीव अ ट्रेल। आप उस रास्ते पर मत बढ़िए भेड़ चाल की तरह जहाँ पे हर कोई जाता है, बल्कि उस रास्ते पर जाइए जहाँ पे कोई रास्ता नहीं है और आप रास्ता बनाएं और आपके साथ सारे लोग आपको फॉलो करें। ये होता है एक सच्चा लीडर। और बच्चों, ये बनने की काबिलियत तुम सभी लोगों में है, क्योंकि ईश्वर ने हमें स्त्री बनाया है। एंड बी प्राउड टू बी अ वुमन। और तब जाकर आपको समझ में आएगा कि आपकी कितनी क्वालिटीज है। अनलेस एंड अनटिल आपका सेल्फ एस्टीम ऊंचा ना हो, घमंड की बात नहीं कर रहे, ये घमंड है, ये सेल्फ एस्टीम, ये इस तरह से जब तक ऊंचा ना हो, जब तक आत्मसम्मान की भावना ना हो, जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगी, तब तक आप अपने भीतर के उस बीज को नरिश नहीं कर पाएंगी। तो तब तक आप उसी तरह से बंद रहेंगी। तो इसीलिए अब आवश्यकता है कि अपने आप को पहचानिए, अपने आप से प्रेम कीजिए, अपने क्वालिटीज़ को जानिए और उनको बहुत ग्रेसफुली पनपने का मौका दीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट बिलीव इन सेल्फ कॉज, यू आर बॉर्न टू लीड। आपका जन्म ही हुआ है लीड करने के लिए, समाज को आगे ले जाए, अपने परिवार को आगे ले जाने के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए, इस राष्ट्र को नई दिशा दिखाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, एज
अ वुमेन, एज अ मदर, आने वाली हर पीढ़ी को नई राह दिखाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है. एंड फील प्राउड दैट यू आर अ वुमेन. एंड तभी जाकर आप समझ पाएंगे कि लीडरशिप किस तरह से ज़िंदगियों में खुशहाली भर देता है. राइट? तो थैंक यू सो वेरी मच. अब मैं ये पटल सौंपती हूँ आज के हमारे कोऑर्डिनेटर को, और रिक्वेस्ट करती हूँ पार्टिसिपेंट्स, अगर कोई प्रश्न हैं आप लोगों के तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं. Thank you, ma'am. Indeed, a wonderful session, very enlightening. SWOT analysis, और ये तो I think हम सभी को काम आएगा, because all of us are struggling between home and kids and work all the time, being gynecologists, especially. Yes. बहुत ही अच्छा था सेशन, क्योंकि आप लोगों का बहुत डिमांडिंग मतलब समय नहीं है ना. आप समय का, जैसे हम सुबह गए 4 क्लास लिए घर आ गए, आपके पास तो समय है ही नहीं. मतलब आप कभी भी आपको ड्यूटी के लिए जाना पड़ सकता है हमेशा. तो सल्यूट, सच्ची में आप, यू ऑल आर ग्रेट. जी मैम कुछ क्वेश्चन. चेयरपर्सन has joined. Swati? Yes, Hemant sir has joined. Chairperson today, Mr. Hemant Avare sir. He is the principal of Government ITI College, Nagpur, and I request him to say a few words. Hello. Hello. Yes, sir. Am I audible? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, fine. First of all, I would like to thanks to NOGS Nagpur, and a special thanks to Swati ma'am for inviting me in such a Navashakti program for specific. There is a one post. या कार्यक्रमात, अशा कार्यक्रमात पुरुषांचा सहभाग का नसावा. So I am there with you. Okay. Thank you for giving me such a wonderful session by Rama Lakshmi Vedula ma'am. Really inspiring one, and hope all the students who join here, my institute student who join here, at least they should burn some. जब लाइट जलती है ना, छोटी पंती जलाया अपन ने अभी नवरात्रि में, हर जगह कहीं दिया जलाया है, तो ये तुम्हारे मन में एक स्पार्क जलाई है आज. मैं सभी लड़कियों को बता रहा हूँ, ये नवशक्ति की एक स्पार्क अपने दिल में जलाई है. अपने मन में मन की इच्छा ठान लीजिए कि हम किस लिए बने हैं. वी आर बोर्न टू लीड. और लीड कैसे करना है, वेदुला मैम ने, रामा लक्ष्मी मैम ने पूरा आपको डिटेल से बनाया. शॉर्ट एनालिसिस से लेके मल्टीटास्किंग से लेके सभी चीजें मैम ने कवर की है. तो होप, मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, होप आई इंसिस्ट कि जो भी आज ऑडियंस है, जो भी गर्ल्स या ऑडियंस मेरे इंस्टीट्यूट की हो, सभी यहाँ गायनोलॉजिकल सोसाइटीज की डॉक्टर्स लेडी हो, रियली I appreciate. You should take someone from this today's session and brought to in our life to become a powerful. That जो शक्ति एक नारी में है, वो नारी शक्ति बताने की आज जरूरी है. और ये सेशन वो नारी शक्ति को सलाम है जो मैम ने दिया है, so that you can thought of थोड़ा सा भी एक अपन ने शुरुआत कहीं से की, तो निश्चित रूप से अपन जो अपन का गोल सेट किया है उसके तरफ अपन जा सकते हैं. मल्टीटास्किंग रहो. एंड आई ऑल्सो ऑब्जर्व दैट कि अ वुमन हैव अ सिक्स्थ सेंस. सामने वाले के आंखों में वो देख के तुरंत पता चल सकती है कि ये सामने वाला जेंट्स हो या लेडीज हो कि फेथफुल है कि नहीं है. ये क्वालिटी गॉड ने वुमेन्स को दी है. मैंने व्हाट आई ऑब्जर्व इन माय लाइफ. सो ये क्वालिटीज का आप यूटिलाइज करो. और जो थ्रेड्स है, थ्रेड्स आपको किससे है, क्या है, इसका इंडिकेशन मेरे ख्याल से वुमेन्स से ज्यादा कोई नहीं दे सकता आज. सो आई thankful to all of you and all those participants. They should
did something, get something from this session, and for our life to be unsuccessful, so flag and march on the path shown by रामालक्ष्मी मैम. और एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं. अभी जो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर है जेसिंडा आर्गन, बस उनको देखिए आज के डेट में. मैं बोल रहा हूं, उन्होंने जो सिचुएशन हैंडल्स की है वो अच्छे यानी पूरे वर्ल्ड में उनका ही चर्चा है आज के डेट में कि हाउ शी हैंडल्स द थिंग. क्योंकि इतना क्राइसिस का वो फायरिंग हो, या अभी न्यूजीलैंड में कोविड-19 की प्रिकॉशनरी मेजर और जो उन्होंने कवर किया है वो पूरे जग में उनकी चर्चा है उसके लिए. तो क्योंकि ये नारी शक्ति है, बता रही है जग को. और अभी मुझे हर इंडस्ट्री से मैं जब कम्युनिकेट होता हूँ, मेरे यहाँ रिक्वायरमेंट आती है, तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज से कि मुझे अभी लड़कों को तो हम रखते हैं, लेकिन लड़कियां कहीं कहीं जो जॉब है मुझे लड़कियां ही चाहिए, बिकॉज दे आर डेडिकेटेड. और जो उनको आउटपुट चाहिए प्रॉपरली, क्या है अपन लड़के आएंगे जाएंगे बाहर जाएंगे 10 बार, लेकिन लड़कियां है वो डेडिकेटेडली अपना काम करती है. और उनको इंडस्ट्री वालों को आज ऐसे वर्कफोर्स की जरूरत है जो कि डेडिकेटेड हो. और नारियों में 100% डेडिकेशन है, वो देने की तैयारी भी है उनकी कि वो डेडिकेट करते हैं. जैसे मैम ने बताया, राजलक्ष्मी मैम ने, कि जो भी वो टास्क लेती है तो वो कंप्लीट 100% उसको देने की उनमें क्षमता है. तो ये क्षमता जानिए अपने में से. आज आपके अभी 9 दिन है, 9 दिन में अपने में जो भी शक्ति है उसको शक्ति को टटोलने की कोशिश करे और अपने में लाने की कोशिश करे. बिकॉज आप ही नारी शक्ति जो है, जो मेरे ख्याल से इनडायरेक्टली पूरे देश को, पूरे फैमिली को वही चला रही है. सो thank you very much for calling me for this great Nav Shakti celebrations by the NOGS. Thank you very much. Thank you. Swati ma'am. Thank you. Thanks a lot for your supportive words and your encouraging words for us. Thank you. So, do we have any questions in the chat box? Girls, if you have any questions, please feel free to ask Vedula ma'am. She is here to guide you, to motivate you, to solve your queries if you have any. बिल्कुल. जो मराठी में एक कमेंट था रामलक्ष्मी मैम जी, वो आई थिंक हमारे लिए ही था, क्योंकि एक प्रोग्राम हम लोगों ने लड़कियों के लिए रखा था. She says कि ये तो पूरी रेवोल्यूशनरी टाइप ऑफ एन एक्टिविटी है जिसमें हम लोग अलग अलग लाइफ स्किल्स पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्यों ना हम लोगों ने लड़कों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए था. मतलब मराठी में इसलिए आपको बता रही हूँ कि उनपे भी ऐसे संस्कार होने की बहुत जरूरत है. तो आई रेड अ वेरी गुड, आई थिंक इट्स वेरी पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया आल्सो. दे से द वीमेन आर नाउ एम्पावर्ड, बट इट्स टाइम टू एम्पावर मेन एंड वी विल एम्पावर देम नाउ टू हैंडल दिस एम्पावर्ड वुमेन. दे आर नॉट यूज्ड टू आवर पैट्रियार्कल सोसाइटी जो थी और है अभी भी काफी हद तक. हम लोग काफी लकी है इस तरह की फैमिलीज को बिलोंग करते हैं जो जिसमें हम लोग को इतना वो फेस नहीं करना पड़ता है. हम लोग इक्वालिटी में भी हम तीनों बहनें थी और हम लोगों को बिल्कुल ऐसे बढ़ा किया गया था कि हमको कभी ये फील ही नहीं हुआ कि हम लड़कियां हैं तो हमने ये नहीं करना चाहिए या हम ये नहीं कर सकते. ऐसा कभी भी अपब्रिंगिंग नहीं मिला. बट एवरीबॉडी इज नॉट सो फॉर्चुनेट. सो बिल्कुल भी सही है. Also, I would, since there are no questions, I would want you to guide these girls. बहुत लोग बच्चियां से थोड़ी डरी हुई रहती हैं. वो अगर उनको इच्छा भी, जैसे आपने बोला अपॉर्चुनिटीज है, रिजर्वेशन है, पार्लियामेंट में भी अगर आज इतनी प्रिविलेज विमेन है फिर भी क्यों हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे कम है. तो अपॉर्चुनिटी जो है फिर क्यों ऐसे हो रहा है. इसका मतलब पढ़ी लिखी भी है तो भी अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर पा रही है. इसका क्या रीजन हो सकता है, हमने क्या चेंजेस? मैम इसके पीछे वैदेही मैम सबसे बड़ी बात ये है कि हमने खुद अपने आप को, अपने पोजीशन को कम करके डिग्रेड करके रखा हुआ है. हम खुद ही इस बात को स्वीकार नहीं करते कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं. एक छोटा सा इंसिडेंस बताती हूँ. मेरी मेड थी
एंड शी इज़ वेरी स्मार्ट, बहुत ही स्मार्ट है, बहुत स्मार्टली सारी चीज़ें हैंडल करती हैं। हॉस्पिटल जाना हो, बैंक का काम करना हो, जो कुछ भी हो सब कुछ कर सकती। एक दिन उसने मेरे को फ़ोन किया शाम को और बोली कि वो मुझे माँ बुलाती है, तो उसने बोला कि माँ मैं आ रही हूँ 7:30, और वो जहाँ से आती है रास्ते में जो दारू की भट्टियाँ वगैरह हैं। तो मैंने कहा कि आनंद उसका हस्बैंड है, मैं बोली साथ में आ रही है, तो उसने कहा कि नहीं आनंद नहीं आ रहा, मैं अकेले आ रही हूँ। एंड मैंने उसको एक साइकिल दिया, साइकिल में छोड़ते वो चलते चलते आई और मुझे देखकर जोर से मेरे साथ लिपट गई और धड़ाम से ज़मीन पर बैठकर सर पीट कर रोने लगी। तब मैंने देखा उसके सारे शरीर पर मार के निशान हैं। इतनी बुरी तरह से वो लड़की मार खा के वो आई। शी इज़ हार्डली 24 ईयर्स एंड मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन। एंड उसको हमने समझाया, उसको किया, फिर हर तरीके से उसको मतलब कि उसके घर वालों को समझाएंगे हमने पुलिस से बात की, NGO से बात की। उन्होंने कहा आप पहले उनके परिवार वालों से बात करो और उसके बाद में कल सुबह हम वी विल टेक अ कॉल। और जब मैं गई तो फिर उसकी सास की बात सुनकर मैं अचंभे में आ गई। उसकी सास पता है क्या बोलती है वैदेही मैडम? वो बोलती है ये पहली औरत है क्या जो मार खा रही है? अगर आदमी ने थोड़ा मार भी दिया तो कौन सा बड़ा काम हो गया, 2-4 मार सह लेने में क्या जाता है। सो वैदेही मैम, आप जैसे लोग सोसाइटी में सिर्फ 15 से 20% ही है मैम। हम शहरों में रह रहे हैं इसीलिए हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। हम 15-20% ही महिलाएं ऐसी हैं जो इतनी प्रिविलेज्ड हैं और जैसे परिवारों में हमारा जन्म हुआ है, आज हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, हमेशा से चाहते रहे हैं। लेकिन अभी भी 80% लोग ऐसे हैं, जबकि हम कहते हैं कि आधी ताकत जो है स्त्रियां हैं, उस आधी ताकत में यानी उस 50% का भी 80% जो है बिल्कुल कुंद हुआ पड़ा है। राइट? बहुत बार मुझे लगता है कि महिलाएं ही अपनी खुद की दुश्मन होती है। सास बहू, मतलब नॉट एवरीवेयर ऑफ कोर्स, बट मेजॉरिटी हम लोग यही देखते हैं। हम एक दूसरे को we always try to push them down rather than pull them up together, और हम एक साथ आगे बढ़ना नहीं चाहते। पता लिमिटेशंस हमने लड़कियों के लिए बनाई हैं। जो माएँ हैं उन्होंने कभी भी ये तकलीफ नहीं की कि लड़कों को समझाएं कि हाउ टू रिस्पेक्ट अ वुमेन और रिस्पेक्ट अ गर्ल। हमने लड़कियों को बताया कि ये कपड़े मत पहनना, जल्दी घर आ जाना, उसके साथ मत मिलना, ज़्यादा टाइम मोबाइल पर बिता रही है, क्या कर रही है मोबाइल पर। हम लड़कों के फोन्स में ताका जाके नहीं करते, लड़कियों के फोन्स में कौन फ्रेंड्स हैं, क्या देख रही है, क्या कर रही है, कैसे कपड़े पहन रही है, किसके साथ बात कर रही है, ऐसे मत मूव करो, ये मत करो। हम ये लड़कियों को बताते हैं। लड़कों को हम ये नहीं बताते कि बेटा लड़कियों के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए। मतलब क्या कहेंगे हम, पीड़ित भी वो, सजा भी पीड़ित को मिल रही है। एंड दिस इज अ फैक्ट मैम। हम लोग अपने ऊपर भले ना लें ये बात, हमारे घरों के लिए ना लें, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर ऐसी वारदातें सच में बहुत तकलीफ होती है। एंड दिस इज द टाइम वी शुड ब्रेक आवर बैरियर्स जो हमने खुद के लिए बना के रखी। हमारा सारा ध्यान जाता है कि मेरा स्किन टोन ठीक नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरे आंखें अच्छी नहीं है, मैं सुंदर नहीं दिख रही हूँ, मेरा फिगर परफेक्ट नहीं है। हम इसके ऊपर जितना ध्यान देते हैं ना, उतना ध्यान हम ये देखें कि मेरी एबिलिटीज कौन से के बाहर निकालूं जिससे मेरे लुक्स के ऊपर कोई फर्क ही ना पड़े, मेरे लुक्स पर कोई फर्क ही ना पड़े। मेरी एबिलिटीज, मेरा इंटेलिजेंस ये ऊपर रखना है जिस तरह से एक पुरुष रखता है। हम पुरुष जब शादी भी करते हैं, हम पुरुष की सुंदरता नहीं देखते, हम देखते हैं कि वो कितना इंटेलिजेंट है, कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया, कितनी नौकरी कर रहा है, कितना कमा रहा है, हम ये देखते हैं। लेकिन जब लड़के की बात आती है तो हम तुरंत देखते हैं कि दिखने में सुंदर है ये नहीं है, गोरी है कि नहीं है। तो हम शरीर से आगे नहीं बढ़ रहे हैं मैडम। मुझे तो बहुत डिस्टिंक्टली याद है जब हमारी शादी का टाइम आया था, तो मेरे फादर ऐसे अदरवाइज हमको कभी ट्रीट नहीं किया, पर उन्होंने बहुत कैजुअली एक कमेंट किया था। एक बहुत अच्छे फैमिली से रिश्ता था, जो बहुत वेल टू डू और बहुत अच्छा, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था ये वो, बट नॉट वेरी गुड लुकिंग। तो इसे वो क्या देखना है, लड़कों को क्या देखना, वो कैसे दिखता है उससे क्या मैटर होता है, लड़कों को कोई देखता नहीं है कैसे भी दिखा। तो मतलब मुझे लगा कि तब ऑफकोर्स वो तो बहुत अभी 26-27 साल पुरानी बात हो गई, बट ये अभी भी ये समाज में है। हम लोग लड़कों के लुक्स, मैं ये देखती हूँ अभी, ये तो कैजुअल बात है, बॉलीवुड में देख लीजिए, अक्षय कुमार व्हाइट बाल लेके आराम से हीरो के रोल्स कर लेता है, और 40 साल की लड़की को तो रोल्स भी नहीं मिलते हीरोइन को, बट वो अभी भी पूरे बाल काले वाले करने में और हाईलाइट करने में बिजी है। बट अक्षय कुमार वेरी मतलब ग्रेशियसली और बहुत कॉन्फिडेंटली व्हाइट हेयर, ग्रे हेयर स्पोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब हम लोग ही खुद, देयर इज समथिंग दैट वी नीड टू डू अबाउट आवरसेल्व्स।
mindset needs हम to शरीर change. हम शरीर से आगे नहीं बढ़ रहे नहीं हैं बढ़ वैदेही पा रहे मैम, हैं। हम भी शरीर से आगे नहीं बढ़ रहे हैं और जो हमें देख रहा है वो भी हमको शरीर से ऊपर नहीं समझ रहा है। दैट इज वो परेशानी, वो भी हमको शरीर से ऊपर नहीं समझता और हम भी अपने आप को शरीर से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। Yes. सो वी नीड टू ब्रेक दिस बाउंड्री ऑफ द सेल्फ इमेज ना, बॉडी इमेज वाला जो भूत सवार है ना, वहां से निकल कर ग्रूमिंग सेल्फ इज समथिंग डिफरेंट, ग्रूमिंग सेल्फ इज समथिंग डिफरेंट। आप अपने आप को ग्रूम कीजिए, कोई परेशानी नहीं, लेकिन आपको ये लगना चाहिए कि मेरे शरीर से बढ़कर मेरा इंटेलिजेंस है, मेरे इमोशंस है, मेरी कैपेबिलिटीज हैं। ये चीज़ हमको भी फील करना है और लोगों को भी फील करवाना है कि वुमेन इज नॉट जस्ट अ बॉडी, बस दैट्स इट। ऐसे नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजें हैं मैडम, बट देन आई नो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरी बेटी पहले लॉग इन हुई थी एंड शी इज आल्सो, मेरे एल्डर वन इज वेरी ओपिनियनेटेड एंड हैज गॉट वेरी स्ट्रांग व्यूज अबाउट बॉडी शेमिंग एंड ऑल, बट उसको शायद लॉग आउट होना पड़ा। आई वुड हैव लव्ड हर टू से अ फ्यू वर्ड्स ऑन दिस, अदरवाइज these new generation girls are really evolved, I must say, and they have good opinions about, yeah I feel so. अभी लड़कियां बहुत बदल रही हैं, बहुत बदल रही हैं। यू नो उसकी वजह आप और हम हैं, बिकॉज हमने ये देखा है अपने जीवन में और हम नहीं चाहती कि हमारी बच्चियां ये सब देखें, एंड हमने उनको वो ज़मीन दी है कि वो सही तरीके से पनपे और बड़े हों। आई यूज टू हैव अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स, इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मेरा था, बिकॉज आई एम 5'10", 5 फुट 10 इंच की हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उस समय में मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब ये देखिए, अभी भी ऐसा ही है कि जब आप रिश्ता देखने जाते हैं तो फिर लड़की से एज में लड़का बड़ा होना, हाइट में लड़का बड़ा होना, क्वालिफिकेशन में बड़ा होना, नौकरी में बड़ा होना, सब कुछ बड़ा होना, एग्री, उसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस है, एग्री, ठीक है, फिर भी चलेगा। बट द थिंग इज इतने हाइट के लड़कियों को लड़के नहीं मिलते, एंड एवरी डे आई यूज टू सफर कि मम्मी पापा रिश्ता लेकर आते थे, बोले हमारा लड़का बहुत लंबा है, देखो तो फिर वो जरूर 2-3 इंच कम निकलता था, एंड आई यूज टू क्राई कि मेरे को इतना हाइट दिया क्यों भगवान ने। एंड माई डैड यूज टू से कि बेटा तू नहीं समझती, एक दिन ऐसा आएगा जब तुझे घमंड होगा, क्योंकि ये हाइट पर्सनालिटी देता है, एंड ही इज राइट। अब मैं उसको वैल्यू कर सकती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे से 1 इंच लंबे हैं, शायद दैट इज द रीजन और वॉट एवर। देखिए फिर से हम बंध गए ना बाउंड्रीज में। ये जो सोच है ना, इसको तोड़ने के लिए समय लगेगा वैदेही मैडम, बट देन वी कैन डू, वी हैव टू डू, या वी नीड टू स्टार्ट देयर ओनली कि ये लंबा मींस अच्छा या गिड्डा मींस खराब, यही तो बदलना है। एग्जैक्टली कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में बैठा है, तो फिर ये सारी चीज़ों को बदलना एक और सदी लग जाएगी। लेकिन हम ये सोच कर कि अगर हम ये सोच लें कि ये इससे कुछ होना जाना नहीं है, तो परिस्थितियां ऐसी बनी रहेंगी वैदेही मैम। इसको बदलने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है, वी हैव टू स्टार्ट इट, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन अच्छे दिन देख सके। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। सही मैम। गर्ल्स यू ऑल कैन ओपाइन, यू कैन पुट इन योर व्यूज, राजश्री, स्वाति, अमी। मैम जैसे अब न्यू ऐसे बोल रहे हैं ना सब लोग, दैट rather than being beautiful it's better to be bold, confident, wear a smile on your face, and not just makeup. What's going to matter is your confidence, your self-esteem, and your smile. So like we should redefine beauty, rather than just looks, fairness, or maybe features. yes वही तो, डिफाइन ब्यूटी को भी हमको अलग से डिफाइन करना, कन्वेंट ब्यूटीफुल का कॉन्सेप्ट ही चेंज। और our daughters, like our daughters shouldn't feel जैसे हमारे घर में भी मतलब जैसे ऐसे ही था कि गोरा होना, like my father was fair, very fair, तो सब लोग अरे he's so fair या whatever, like my husband is fair, so everyone, my daughter is not that fair. So even my teachers, when I went for a farewell party, they were like कि इसका कलर किस पे गया है करके। exactly, sad but true, या ऐसे होता है। सो अगर हमने अपने आप को ग्रूम किया, बॉडी और माइंड को, तो फिर और क्या चाहिए? हैव अ वंडरफुल लाइफ। कॉन्फिडेंट वुमन इज अ ब्यूटीफुल वुमन, आई शुड से। यस मैम, जस्ट लाइक यू, ब्यूटीफुल। you and Puna मैम, स्वाति मैम, राजश्री हम मैम, सब अमी, हम सब हमको ये विश्वास होना चाहिए कि हम सब ऐसे हैं, ये ज़्यादा ज़रूर जी। Thank you so much. Girls, any questions? So, हम लोगों ने एक yes, शरद भावे सर, 1 मिनट में चेंज करते सेटिंग्स, you can unmute them. One moment. भावे सर तुम्ही अनम्यूट करू शकता, बोला।
हाँ, hello. We are both listening. अच्छा भावे मैडम ओके हेलो Hello. Dr. Bhave madam is the superintendent of Matru Seva Sangh Nagpur, a big charitable hospital. अरे हम लोग दोनों भी सुन रहे हैं. My husband is also management person, so he is also there to listen to your talk. Yes. So glad, ma'am. Thank you so much, both of you. Namaskar. Ma'am, Welcome your comments. Ma'am, I wanted to express two things. Yes. Number one is in a house. Suppose a child asks me something. Many times the mother says, she says everything what she wants to say, and then she says, Father se pooch hi lo. I want to ask the other question. How many times does it happen that the father says, कि मैंने तो सब बोल लिया, एक बार माँ से पूछो. Exactly. Right. I think this thing has to come in. Correct. I'm 74 years old, and in my house, this was practiced by my parents. Wonderful. Wow. And that was 60 years old or 70. Wow. I think the beginning has to be there. True. And secondly, I said, why women ask for equality? Because in the mind of the society, equality doesn't dwell. That thought never came to my mind because I always felt that my wife is equal or more. But There are very few men like you. But ma'am, one minute. I want to say that the responsibility is of parents. I think so. Because we are all close to our mother first. Whether be a man or a woman, mother is the first one. And first 5 years totally dependent on her. So I think it depends on how she, of course a man, I'm not saying, but both of them has to. My first line was important. Ki, how many times it is said कि मेरे से तो पूछ लिया, माँ से एक बार पूछ. That is one thing. And second suggestion I want to make is modest suggestion. There is a book called "If You Raise the Children, You Can Manage Anything." Yes. ये आप औरतों से मेरी एक सजेशन है, आप तो जरूर पढ़ें. Because it advocates your purpose and it clarifies many concepts. Yes. It says the biggest job in the world is that of a housewife. Normally in a party, even the well-to-do executives, they introduce, oh, she is a housewife. What do you mean by, oh, she is a housewife? She is running the entire household. So that book you must read. Of course, it's an American book. And the author, there are two authors rather, lady authors. Her surname is Crittenden. 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 Okay. Of course, someone can go on the net and find out. I read that book some 13 years ago, but it's a big size, 700 pages. Okay. And they're all interviews of women Okay. who took up household chores and then they were mothers and then they took up jobs in companies and went on to become vice president. Vice President. Wow. I think that these two things I wanted to say. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Reena ma'am. Dr. Reena Sara has raised her hand. गुड इवनिंग एवरीवन. विदुला मैम आपका बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग था. एज अ मदर मुझे भी फील हो रहा था कि मैंने जो मेरी बेटी को मोटिवेट जितना करेजियस बनाना चाहिए वो मैं हर बार होता ना कि नहीं तुम लड़की हो तुमने ये. उसके हस्बैंड ने उसको एक एंटीसेप्टर बाइक लेके दी रॉयल एनफील्ड की. तो मैंने उसको कहा कि लड़कियां इतनी बाइक चलाएंगी क्या अंकिता, अभी ये सब बाइक चलाने के तुम्हारे दिन है क्या. तो वहां पर ऐसा होता है ना कि व्हाई वी डिफरेंशिएट बिटवीन बॉय एंड अ गर्ल. तो आज आपकी बात सुन के मुझे भी इंट्रोस्पेक्ट करने की इच्छा हो रही है कि एक बार मदर्स भी गलतियां करती है, डिफरेंशिएट करती है बेटे में बेटी में. हम लोग लड़कों को किसी चीज के लिए रोकते नहीं है कि वो बुलेट चलाए, जो भी बाइक चलाए, वो लड़कियों को हम लोग रोकते हैं. क्यों हम लोगों की जो यहाँ पे कहाँ इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, डर है कि लड़की का कुछ पैर टूटेगा, कुछ प्रॉब्लम आएगा तो हाउ शी विल बी टेकन केयर. लड़कों की केयर की जाती है. अगर उसका हाथ पैर टूटेगा तो हम लोग पूरे जान लगा देंगे उसको खुद से खड़े करने में. पर लड़की का पैर न टूटे, लड़की का हाथ न टूटे, इसके लिए हम उसको डराते रहते हैं कि नहीं गिरेगी तो तेरा ये हो जाएगा. तो आई थिंक कि एवरी मदर शुड ऑल्सो always see both the children, male or female, at the same eye. And it was really introspecting. आपने जितना आज बताया, मैं
पूरा शुरुआत से ज्वाइन नहीं कर पाई थी, बट मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी क्वेश्चन पूछने की, वैदेही ने अब जाकर अभी दिखा आपका रेज हैंड। हाँ, आपने वीडियो भी बंद करके रखा है ना, दिखे अभी आप मुझे। तो मुझे लगता है ना कि जो मदर्स है जिनको बेटे हैं, जैसे मेरे हमारी सेक्रेटरी मैम है राजश्री, इसका मैंने जानबूझ के एक फ्लायर बनाया था एक स्लोगन देके कि आई एम रेजिंग माय सन्स that you would be safe with, all the daughters would be safe with. I promise I'm raising my sons that way. So I think all mothers out here, Swati has a son. So those mothers who have sons, they have more responsibility to raise real responsible sons for the society. मेरे यहाँ उल्टा है, मेरे यहाँ लड़की बहुत टॉम बॉय है और मेरा बेटा तो किचन, कुकिंग, मदर, वो सारा फेमिनाइन कामों का शौक है उसको. So don't, that's what Reena, no, we can't, we should not categorize jobs like feminine job and a masculine. लड़कियों का काम है, लड़कों का काम, ये तो गया. मेरे से मेरे बेटे ने एक बार पूछा था, स्कूल में कुछ कॉम्पिटिशन्स थे, रंगोली कॉम्पिटिशन, फ्लावर अरेंजमेंट, सैलड अरेंजमेंट, तो उसने कहा कि अम्मा मुझे एक बात बताओ, क्या ये कॉम्पिटिशन्स में लड़के पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? तो ही वॉज इन क्लास 9. तो मैंने कहा किसने कहा? तो बोले कि नहीं अम्मा, इनमें ना सिर्फ लड़कियों के नाम ले रहे हैं. मैंने कहा बिल्कुल नहीं बेटा, दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो लड़के अलग लड़कियां अलग बना हुआ है. एक ही काम है जिसका प्रिविलेज लड़कियों के पास है, और वो है एक नई सृष्टि को जन्म देना, बीइंग मदर, जिसके लिए शी इज रियली ब्लेस्ड. दैट्स व्हाट ना, वो ब्लेसिंग हमारे पास है. उसके अलावा कोई काम ही ऐसा नहीं बना है जो लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अलग अलग हो. सवाल ही नहीं उठता है. लेट मी टेल यू विदुला मैम, हम तो लड़कों को एनकरेज करते हैं कॉलेज में रंगोली में पार्टिसिपेट करने के लिए, और सचमुच में लड़कों को प्राइज देते हैं. अगर सेकंड वन ऐसे रहा ना, हम लोग थोड़ा सा करते हैं मैनिपुलेशन कि लड़कों को प्राइज मिले, एनकरेज करने के लिए. उनको मेहंदी भी लगाते हैं लड़के, मेहंदी भी बहुत अच्छी लगाते हैं. मैडम, जो बड़े बड़े जो मेहंदी आर्टिस्ट है ना, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो स्टार्स को लगाते हैं, ये वो सारे मेन हैं मैडम, देखिएगा. Often it is said that कि हर काम लड़के भी करते हैं जो लड़कियां करती हैं, लेकिन जहाँ पैसे कमाना होता है वहाँ पे लड़के दिखते हैं. जैसे घर का काम, किचन में खाना बनाना, उसके पैसे नहीं मिलते, औरतें करती, लेकिन होटल में पैसे मिलते हैं तो लड़के वहाँ पर होते हैं. बट देन ऑन अ लाइटर साइड वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ बना ही नहीं है कि लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है. मैडम, लड़कियां आजकल ना जो लड़कों के साथ कॉम्पीट करने के जो थोड़ा सा एक जो इनमें आ गया है ना कि हम कहीं कम नहीं है, ये जो स्मोक करना लड़कियों का, वो उनको ये बोले ना अगर कि बेटा ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो बोले क्यों ठीक नहीं है? लड़के कर सकते हैं, लड़कियां. मैं बोली अरे यू आर गोइंग टू बी अ मदर. तुमने लड़के, जैसा हम स्टूडेंट्स को समझाते हैं ना कि फर्क पड़ेगा, तुम कल को माँ बनने वाली हो, तो माँ बनने वाली हो तब देखा जाएगा, सबका तब देखेंगे. भाई भी यानी वो जो होता ना, एक प्रियंका चोपड़ा का था, एक एक्टिव लड़कियां कहीं पीछे नहीं है, उन लोग वाइज दे शुड नॉट हैव अ फन. तो ये चीजों में आजकल लड़कियों का एक मिसकंसेप्शन आ गया कि जो रिबेलियस टाइप का वो लोग बिहेव करती हैं, और थोड़ा हम लोगों को सोचते हैं मदर्स को कि वी आर ओल्ड स्कूल. तो यहाँ कहीं कहीं पे थोड़ा एग्रेशन. रीना, मुझे ऐसे भी लगता है कि अगर हम लोग बताते समय ये बोलेंगे कि लड़के आप दोनों को स्मोक नहीं करना है, मे बी दे विल रिलेट टू दैट बेटर, बिकॉज वी से यू आर अ गर्ल एंड यू डोंट स्मोक, दे रिबेल. Right. Although it's injurious to both of them for health, maybe. Although what you say you have a point. But they rebel because they feel कि अब मैं लड़की हूँ इसलिए मुझे बोल रहे ना, अब तो मैं करूंगी. मैम, वो जो होता है ना, स्प्रिंग जब होता है, स्प्रिंग को आप जितना ज्यादा प्रेशर करोगे और वो जब उछलता है ना, खुलता है ना, तो बड़ी तेजी के साथ खुलता है, और इतनी तेजी के साथ खुलता है कि चोट तो लगनी है. अभी यही हो रहा है, एक्चुअली अभी यही हो रहा है. ये संभलने के लिए भी हमको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा लड़कियों को, और हम लोगों को उनकी केयर करनी पड़ेगी. समझ जाएंगी, और समझ रही हैं. आजकल की लड़कियां बहुत समझदार है, बहुत समझदार. मैं तो अपनी बेटी को देखती हूँ. भावे सर बोला, आई मस्ट अप्रिशिएट वैदेही एंड NOGS, तुम्हारा जो है वो सबको ये प्लेटफॉर्म दे रहा है चैट करने के लिए ना, अदरवाइज ऐसे पॉसिबल नहीं होता है. एब्सोल्युटली, थैंक यू. एटलीस्ट लास्ट के जो 10 मिनट्स है, आप लोग ये जो सबको चैट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए अलाउ करते हो, that is really very very good. Yes, thank you. Bhave sir. I am now into physical activity, and I do cycling and I do jogging. I do 10 kilometers every weekend, and I did 73 kilometers on bicycle on Independence Day. Ooh. To celebrate 73 years of independence.
my point is that there are women along with us, and we encourage them very much. There are women up to 45, 50, and in the age group of 30, 35, there are number of doctors. Dr. Sule is there. She must be around 45. So Shivani Sule, we encourage them, and alongside they bike 50 kilometers, 60. तो ये तो जरूर encourage करना है, और उसमें कोई there is no gender discrimination. आपके अंदर उतनी ही ताकत है, शायद आपको किसी ने बताया नहीं, जैसे हनुमान को बताया नहीं था कि तेरे अंदर क्या था. You are as powerful. I don't find any why weaker sex. Who says it's a weaker sex? It's not a weaker. Let us be equal, and they do all activities like this. There are women of 40, 45 doing 10 kilometers jogging. They're doing 50 kilometers, 500 steps every day. We have a group like that, and I think such groups we must involve children also. They must see seniors doing also. Thank you. Ami. Ma'am and sirs, I have this thing that I have a question कि वैसे we can't deny this ना कि physically and physiologically in all ways men and women are different, but only at the cerebral level, as in the cerebral capabilities will be should not be differentiated. That is same like emotional quotient, IQ. Absolutely. So I think we can't compare women and men at the physical or physiological level, because women have to take a break when they have kids, whatever. But at the cerebral level, maybe we can always compete with men, but not in a bad way. In a good competition. Correct. Absolutely correct. अपने आप से compete करने that is more than enough. पहलवान बनना है और मतलब कि इससे मेरा ज्यादा weight lifting होना चाहिए वगैरह वैसा नहीं, but नहीं, they are selected for fighter planes now. I mean, what more you are? Yeah, exactly. वैदेही मैम हम खत्म कर सकते हैं? या बिल्कुल. We can come to yes. मतलब और कुछ नहीं, मेरा दरअसल 6 o'clock एक और सेशन है, तो मैम we are so thankful to you. You've given us such a long. We started at 4:50. It's almost 6 o'clock. नहीं, वो 6 बजे सेशन नहीं होता तो मैं और रहती. नहीं मैम. Really, thank you so much. Quickly, Rajasi, over to you. Thank you, ma'am. Thank you. Vedula ma'am, profuse thanks to you for a wonderful session. It was so passionate and it was so reaching right up to the heart. Direct दिल से था और दिल तक था. एकदम एक कनेक्शन बन गया है यहाँ की सारी पार्टिसिपेंट्स का. I mean, I can see अपना जो अभी आखिरी में जो अपना डिस्कशन हुआ, so many inputs and everybody could relate to what you are trying to tell. Absolutely makes sense. और आपके सारे points very well taken. It is our onus. We need to do our SWOT analysis. We need to reduce our expectations from ourselves. Yes. Really, I mean, it's worth it. It's never too late to start. So thank you so much for all your valuable points and inputs, ma'am. Really appreciate. And special thanks to Hemant Avare sir for his inputs also. Very well said, sir, कि ऐसे discussion में एक male का होना ज़रूरी है. And you are the male representative here. And thank you very much for being such a positive, giving us a positive feedback on this important point. We are born to lead. We are multitaskers. And yes, we are not the same as men. We are different, but we should accept the differences and try to do the best that we can in our own limitations, which makes sense, really. Here I would like to say one thing, ma'am. आपका lecture सुनते जब मैं सब strengths वगैरह वो सब आपका सुन रही थी, I could actually visualize one person in the role of a perfect leader, and that is our president, Dr. Vaidehi Marathe. Absolutely. I mean, I'm sure all participants here will agree. आपने जितने points enumerate करा है, वो सब उन पर लागू होते हैं. So, and you can see the vision with which she plans and these programs one after the other is absolutely amazing. I second your view, Rajasi. Yes, Reena ma'am. Totally. Thank you. Every one of us will have to second and third and 100 by view here. And at the same time, उसको कोई उसके दिमाग में हवा नहीं चाहिए. No air in the. अरे कुछ है. Sweet, that's so sweet of you, Reena. Yeah, really. Thanks, Rajasi. Thank you. So much. Special thanks to our coordinator for the day, Dr. Ameera Hatekar. She's been very sweet and very hardworking. Sincerely, yes. She's our new discovery. Yes. And I'm glad I suggested Madam her name.
So that she has shouldered the responsibility so well. Thank you, Ami, for that. Thank you, ma'am, for this opportunity. Thank you so much. And our team, Swati, Parul, Riju, Soumya, Swadha, all you girls, bundle of energy, firebrand, live wires ho tum log sab. Really appreciate your efforts. Thank you, girls. Vedula ma'am, we have named them. Hanji? Rajyasree, tell them what we've named them. They are the Ashtabhuja of our Navshakti. Yes. Wow. We have a group of these girls who are the Ashtabhuja of our Navashakti. Wow. अष्टप्रहरण धारिणी. Yes. Thank you so much. खाली भुजा होने से नहीं चलता ना, अष्टप्रहरण भी होना जरूरी है. Yes. Not that भुजा बेकार है. बिल्कुल सही बोला. And special thanks to all the participants, all the principals and all the students who have logged in. Please do log in for tomorrow's session also. कल है चौथा दिन. मैम एक चीज पूछना था, क्या आप लोग ये सेशंस रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? क्योंकि हमारे जो हमारे जो कलीग्स हैं वो लोग कुछ मैं बताती हूँ. जी मैम, मैं बता ही रही हूँ. वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग पूछते रिकॉर्डिंग हो तो हमसे शेयर करो. हाँ मैम, हमारा फेसबुक से पेज है NOGS के नाम से. आप उस पर चले जाइए, सर्च कीजिए NOGS. You will be able to access the recorded Facebook live event also. Wonderful. And please do log in for tomorrow's event also. It is day 4. इतने इंटरेस्टिंग आप लोग कर रहे हो सेशन, तो कोई छोड़ ही नहीं सकते. बिल्कुल. माँ कुष्मांडा है, कल चौथा दिन है, और डॉक्टर निशिकांत कोतवाल सर सेशन ले रहे हैं हमारा. The session is titled I Want to Live. It is about battling depression. It's another extremely important and crucial, very sensitive topic related to women, related to girls. और आजकल ये लॉकडाउन पीरियड में इतना बढ़ गया है, mental instability, depressions and all that. So I think it's a need of the hour. विदुला मैम, आप लीव कर सकते हैं, हम लोग डिस्कस करें, तो आपको लेट हो जाएगा. आपका नेक्स्ट सेशन है ना? अच्छा. Yes, thank you so much. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Vedula ma'am. Thank you so much. Thank you so very much. Thank you. एक्चुअली मुझे लग रहा था कि मैम को लेट हो रहा है, तो उनको अपन ने अटका के नहीं रखना. हम लोग डिस्कस करते रहेंगे और उनको टाइम दिख रहा होगा कि अरे 6 बज रहे, नेक्स्ट सेशन है. इसलिए मैंने वो अंधेरे के पीछे से बात मत करती ना, वीडियो ऑन कर. वो करती ना बाद में. मैं एक्चुअली वो अंधेरे में से लगता है कौन बात कर रहा है अपने से. फिर तुम बोलती मेरे को चांस नहीं दे रही हो, दिखती नहीं हो तो कैसे चांस दूंगी. कल मैं एक्चुअली कुछ काम कर रही थी. काम करते मुझे सडनली याद आया कि अरे I know यार. कल मिलते हैं फिर. Yes. 4 o'clock मैम, सेम टाइम. और राजश्री, आपका जो कंडक्शन है ना, इतने सुंदर वर्ड्स, आपका जो वर्ड पावर है, मुझे लगता है कि आप लैंग्वेज के टीचर थे क्या कहीं पहले? अरे नहीं, she writes also very well. बहुत अच्छा बोलती, बहुत अच्छा. Thank you ma'am. Thank you. That's very well. Bye. चलो bye. Bye. अमी मस्त केलस. Good, very well done. Thank you, ma'am. बहुत अच्छा किया. Thank you अमी. मैं शेयर करती हूँ ये वाला. Yes. तो शेयर करना. Like this. Wonderful. बहुत अच्छे से किया. Nicely done. अभी तेरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, पता है तेरे को? हाँ, पता है. तेरे से बात की थी जो. हाँ, बिल्कुल. आने शुरू भी हो गए मेरे को मैसेजेस कि हाँ सेंड ऐसे. हाँ मैम, मेरे पास भी आ गए हैं, जैसे आपने डाला काफी सारे. सेंड टू आमी ऐसे आ रहे हैं मुझे. इसमें तो वैसे भी कोई लिमिट भी नहीं है ना, जितनों के आएंगे सबको अच्छा लगता है अपने. हाँ, अच्छा लगता है. थैंक यू भावे मैडम, भावे सर. काय तानिया सगळ्या मैत्रिणींना बोलवत जा रोज. Yes, every day I am listening to your talks. अच्छा, ये that every day. Thank you. Just open the video. अच्छा, आज दिसला ना मला. Oh, आज बाबा एमी थी हमारी. नहीं आने. Thank you. That's how I was wondering. अच्छा. It's not like that. It's not like that, but she was the one. She reminded us. अरे आज है, मैंने बोला हाँ. That's nice. Wonderful. Wonderful. उद्या पण another very interesting one. Keep it up. बहुत अच्छा लग रहा है. You are doing wonders. Very great. Teamwork, ma'am, as I told you, always. Thank you. Good. Very good. Time to end. Bye, ma'am. Well done, Abhi. Well done. अब लग जा काम पे.
मैम लास्ट में मुझे एक याद आ रहा है दैट जैसे बोलते हैं ना दैट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन, बिहाइंड एवरी सक्सेसफul woman is also a woman itself, either her mother or mother-in-law. I say maid. I have both. I will say behind every successful woman there is a maid. Maid, I should not use that word maid. I should use someone who helps her at home. So it could be a mother, mother-in-law, of course. Good one. For me, it was a maid. For me, it was a maid. Good. Chal. Great then. Bye. 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 Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.